मिडिल क्लास फैमिली क्या करती है ना, अपने पूरे लाइफ की सेविंग्स सिर्फ 2 जगह पे खर्चते हैं, एक घर बनाने पे, एक बेटी की शादी पे। इसके आगे वो लोग कुछ सोचते ही नहीं है। आज भी आई थिंक कस्टमर्स को लगता है रिटर्न तो ऐसे ही हो जाता है, क्योंकि अमेजॉन और मिंत्रा एंड नायका एंड दीज बिगर ब्रांड्स, इन्होंने ना इतना ज्यादा कस्टमर को स्पॉइल किया हुआ है, स्पेशली अमेजॉन। व्हाई अमेजॉन इज डूइंग आई डोंट नो। सो ये सब बैटल आपका चल रहा होता है। इस पूरे दौरान आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो, रो रहे हो, बिकॉज एक तो आपको खुद कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, ऊपर से आपके आसपास के रिश्तेदार हो रहे हैं, क्या कर लिया बेटा, ठीक है। वो जो ग्लैमर साइड है ना, लोग हमेशा वो ग्लैमर साइड को देखते हैं बिजनेस की। जब आप अपना बिजनेस करते हो, आप खुद को छुट्टी देना पता कितना मुश्किल काम है। मैंने कहीं कहीं पे देखा है कि किसी ने कुत्ते के मुंह में पटाखा रख कर जला दिया, उसका आधा फेस बर्न। आई मीन व्हाट काइंड ऑफ अ बिहेवियर इज दैट? इतना इनह्यूमन हो तुम। एंड देन रिसेंटली आई गॉट टू नो कि जो चिकन होता है वो झटका और वो हलाल भी कोई चीज़ होती है। मैंने कहा तुम उसका डेथ भी डिस्कस कर रहे हो? Hello and welcome to yet another episode of our podcast, and today we have with us another amazing speaker. So hi Prachi, how are you? I'm good, Harshita. Thank you so much for having me here. I'm really excited for this, honestly. Yeah, I am excited too, because just to give a short introduction about you, Prachi owns another small business which is about home decor, and if you check her page just like I did, it's so Pinteresty. Thank And you. I love the vibe of it, honestly. Itna aesthetic and amazing. So Prachi, we are here to know your journey, how you started, and just like which is the motive of our podcast, Right. to get more small businesses just like us and know their journey and how they have reached where they have reached. Because I believe कि हम कहीं तो किसी के लिए तो inspiration होंगे, right? भले I hope हम so. सोच रहे हैं that we have not reached there, but I think people who are just starting up, they Right. definitely will look up to you, and they definitely want to know how you reached here, right? Right. So a little introduction about how you started Chokhut and how it all came into your mind, and why this particular niche you chose in this brand. Okay, so if I go ahead and talk about my childhood, so ever since I think first, second class, I have been into paintings and drawings. Like if you see my certificate files that we all have, उसके अंदर कुछ और नहीं है. You'll just see magazine, painting, drawing, all of that. So I was sure that I want to go into something of this field. But what? Because this is, I'm talking about 2012 when I was in 12th. So उस टाइम पे उतना गूगल या उतना आपको लोगों से जो सुनने में आ रहा है, so वही आप सुनते हो. So 2011 I was in 11th, and that point of time I got to know about something called NIFT. ओके, सो उससे पहले मैंने कहीं सुना नहीं था, कुछ नहीं था, बस इस फील्ड में जाना है, दैट वाज आई वाज श्योर अबाउट. सो मैंने निफ्ट के लिए कोचिंग स्टार्ट किया 2 years का. 11th and 12th स्कूल के बाद में कोचिंग जाती थी हॉस्कास, एंड दैट्स हाउ आई अंडरस्टूड कि ये फील्ड में देयर आर मल्टीपल कोर्सेज अवेलेबल. लाइक प्रोडक्ट डिज़ाइन है, फैशन डिज़ाइनिंग ऑफ कोर्स वी ऑल न्यू, बट प्रोडक्ट डिज़ाइन वाज समथिंग विच उसमें मुझे इंटरेस्ट आया, बिकॉज दैट वाज समथिंग जो मैंने कभी सुना नहीं था, एंड आई थॉट मे बी ऐसा कुछ मैं कर सकती हूँ. एंड somehow I cleared NIFT, but I think that's what God wanted me not to do. So मैं NIFT नहीं जा पाई because I couldn't get Delhi. I got Okay. NIFT other states, and somehow I was not able to go there, and I ended up in Goenka. Okay. And Goenka was a place where मुझे बिल्कुल भी नहीं जाना था, because it was expensive. It was very far from my home. I stay in Ghaziabad, and Goenka was in Sona Road. So it was 3 hours on one side. And so it was very expensive. The education was very expensive. Somehow my mom, she said that मैं कराऊंगी अपने बच्चों को जो उसका मन है, because मैंने होप छोड़ दी थी कि मम्मी I'll take up some DU का कोर्स जो उसमें, because DU की फीस इज समथिंग जो मेरी 1 महीने की फीस भी नहीं थी, वो पूरे 1 साल की फीस होती DU में. So that was the difference. I studied from DU. See, so I think उस वे में मैं अपने पेरेंट्स पे वो प्रेशर नहीं डालना चाहती थी, but my mom was very इस वे का कि नहीं, जो उसका मन है I'll make her do it. So I ended up in Goenka, and I started studying. It was a 4-year degree course, and that's how I came to know about वहाँ पे आपको हर एक कोर्स के बारे में पढ़ाते हैं. They'll tell you the basics of science, basic of metals and coatings and processes, and then you choose your own field. So I think since college only I had this interest towards home and decor. So, whenever I used to get a project, I used to make a furniture or a light, a lamp, something related to home and this field. So that's when I realized that this is something I want to do for life. And we have this, I had never enjoyed my college life because I was a scholarship student. And वो उस साल के बेसिस पे नेक्स्ट ईयर आपको फीस में कंसेशन मिलता है. सो मैंने पढ़ाई करी, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करी. नो बंक्स, नथिंग. सोना रोड में वैसे ऑनेस्टली क्या ही बंक कर लेते. हाँ, बट सो इट वॉज 3 hours. मैं सुबह आई थिंक 5:30 निकलती थी घर से, एंड मैं कॉलेज पहुंचती थी 3 side, एंड 3 घंटा वापस घर.
मैं वहाँ पे स्टे नहीं करी बिकॉज आई थिंक इट्स अगेन इट्स एक्सपेंसिव एंड प्लस आई फील दैट व्हेन आई एम स्टेइंग नियर टू माई प्लेस आई विल प्रेफर स्टेइंग एट होम बिकॉज आई एम नॉट अ वेरी घूमने वाला और बाहर जाने वाला किड। आई एम माई मम्मी का बच्चा इन दैट सेंस ऑलवेज। सो मैंने वो चीज़ को रियलाइज़ करा कि अच्छा होम डेकोर है एंड मैंने इंटर्नशिप्स उस फील्ड में करी टू अंडरस्टैंड अबाउट इट मोर। एंड एक ना चीज़ होती है व्हेन दे टीच यू डिज़ाइनिंग। सो मेरा एज अ ह्यूमन एज अ गर्ल बहुत इंटरेस्ट है बैग्स। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ हैंड बैग्स Okay. बिकॉज मतलब मेरा एक सपना है कि मेरे पास भी पूरा रूम फुल ऑफ हैंड बैग्स हो। सो माई मॉम I टोल्ड मी think you are like my mom because she loves handbags. I mean, love it, I we love it. go to the market, we are not supposed to take a handbag, and we end up buying two because the shopkeepers like उनको पता चल पता चल जाता जाता है है, वो and पकड़ they लेते like हैं वही। मैम आप पे तो ये भी अच्छा लगेगा and हम 2 लेकर आते हैं, literally 2 लेकर आते वो हैं। होता है दैट्स मी। अगर मैं कहीं जा रही हूँ तो मेरी चाल ना मेरी ऑटोमेटिकली राइट हो जाएगी जहाँ पे मुझे दिखेगा कि बैग की दुकान है। मुझे लेना है नहीं लेना दैट सेकेंडरी बट आई लाइक सीइंग देम। सो माई मॉम टोल्ड मी मे बी तुझे इतना पसंद है एंड दिस इज समथिंग दैट यू कैन डू बिकॉज दे टीचर्स इन कॉलेज ऑल्सो द स्टिचिंग एंड बैग एंड ऑल Right. दैट। सो आई ट्राइड। सो आई सैट डाउन आई टुक अ पीस ऑफ पेपर एंड वाज लाइक यार आज बैग डिजाइन करेंगे। एंड मैं 20 मिनट बैठी हुई हूँ, मेरे को दिमाग में एक भी आइडिया नहीं आ रहा। इट्स ऑल ब्लैंक कि where to start and if you tell me that you have to design maybe let's say a piece of furniture, a table, I'll have 100 of designs in my mind. So that's when I realized कि नहीं यार यही है, मेरे को यही आता है। So उसमें मैंने internships करी and I ended up in a job, मतलब whereas my classmates were doing internship because last जो final year एक होता है 6 months का, उसमें आपको internship करनी होती है and then you get to have a job. So वो 6 months में I went for an interview for a internship but they hired me full time. Okay. They said कि हम interns नहीं रखते हैं, we like you and we'll hire you full time. So me coming from a very basic background, मैं तो बहुत ही खुश थी कि जहाँ internship चल रही है वहाँ मेरी job लग गई है. I'm earning full time. So that's when I started this and it was an export house in Gurgaon only. And we used to make similar kind of products, trays, fruit baskets, jars and lamps and stuff for US and UK companies. So वहाँ मैंने सीखा about materials, about glass, how do we coat it, क्या कैसे colors बनते हैं, कैसे process होते हैं, how do you exactly design the products, proportions, size, ergonomics, everything. But the environment was very toxic. Okay. So until my first job, I come from a very basic background where my dad is into job, my sisters are into job. So मुझे भी job ही करनी थी कि अच्छे marks लाने हैं और job करनी है. That was the idea of my life. But when I started my job, my first job in the export house, the environment was very toxic. Like I still remember, I think मेरा third day था office में and रात को 10:30 बजे meeting start हो रही थी. So I was 21 years old. एंड फॉर 21-year-old गर्ल जिसने कभी घर से वो बाहर नहीं, मतलब मैं गई हूँ बट मैं कभी रही नहीं हूँ अकेले बाहर. सो इट वॉज वेरी शॉकिंग कि 10:30 बज रहे हैं. ओके अब मैं घर कब जाऊँगी. ऑफलाइन मीटिंग इन ऑफिस एंड आई वॉज देयर इन ऑफिस इन सुबह का 10 बजे 9:30 10 o'clock. सो रात के 10:30 हो रहे हैं, मीटिंग स्टार्ट हो रही है तो ये खत्म कब होगी. एंड मैं 2 घंटे दूर रहती हूँ गुड़गांव से गाजियाबाद. हाउ इज दिस गोइंग टू हैपन. सो मैं 6 months आई थिंक आई वॉज क्राइंग कि ये मैं कहाँ आ गई हूँ. एंड आई स्टार्टेड हेटिंग दिस फील्ड ऑफ डिज़ाइनिंग कि शायद मैंने गलत ले लिया, मुझे शायद से पेंटिंग से जाना था. आई डोंट नो मुझे क्या, बट ये तो मुझे पसंद नहीं आ रहा है. सो वहाँ से मुझे लगा कि समथिंग इज़ रॉन्ग. सो 6 months मैंने दी है. इट वॉज माई ओन जर्नी ऑफ अंडरस्टैंडिंग माई सेल्फ एंड हाउ टू बी इंडिपेंडेंट. एंड अगर आपका मैनेजर इज ऑफ दैट सॉर्ट जो आपको घर पे जाने नहीं दे रहा है टाइम से, बिकॉज शी वॉज मतलब वहाँ आपका सैटरडे वर्किंग है, कभी अगर काम है संडे भी वर्किंग है. सो देयर वाज दिस टाइम जब आई थिंक आई लेफ्ट घर Saturday morning 8 o'clock. I reached office I think 10:30 and it was Saturday. And next day morning Sunday को 7 o'clock तक I was in office. पूरा दिन निकल गया है, पूरी रात निकल गई है, सुबह हो गई है. We are in office. And what was the salary of this? I started at 35,000. 35,000 में 24 hours 24 ज़्यादा 24 hours से ज़्यादा शिफ्ट हो रही है बिकॉज आप काम ही करो. एंड वो 7 बजे तक हम ऑफिस में हैं. 7:30 वी लेफ्ट ऑफिस. 2 बजे हम दोबारा आ गए संडे को ऑफिस में बिकॉज क्लाइंट ने आना था एंड वी हैड टू गेट द सैम्पल्स मेड एंड स्टफ. तो इतने में तो आप घर पहुंचे ही कितनी देर मैं तो घर ही नहीं पहुंच पाऊंगी ना. सो आई स्टेड एट माई फ्रेंड्स प्लेस इन गुड़गांव क्योंकि मैं 2 घंटे का घर जाऊंगी. मैं क्या करूंगी घर जाके, मुझे तो वापस पहुंचना है 2 बजे. सो ये दिस वॉज द एनवायरमेंट एंड दिस इज व्हेन आई फेल्ट दैट इतना यार मैं काम अपने बिजनेस में दूंगी सो इससे तो बेटर ही कमा लूंगी. मतलब इट वॉज अ वेरी वेग, हल्का धुंधला सा एक आई वुड से अ ड्रीम. सो वहाँ पे वो जो सीड होता है एंटरप्रेन्योरशिप का, स्टार्टअप का, वो एक बस मैंने अपने दिमाग में रखा कि यार मे बी सम पॉइंट ऑफ टाइम इन माई लाइफ आई विल डू इट. व्हेन, वेयर, हाउ, नथिंग, आई विल डू, बस खत्म.
अब वो मैं काम कंटिन्यू करूँ, एंड मैंने आई थिंक वहाँ पे 1 साल काम किया. देन आई पिक्ड अप अ सेकंड जॉब विच वॉज देयर क्लाइंट, which I was not ideally supposed to do because legally I'm not allowed to do it as per the contract I signed before starting the job. So that job I joined, it was a merchandising job. It was not a designing job. You know, मैंने उसको इस पर्सपेक्टिव से ज्वाइन किया एज अ मर्चेंडाइजर बिकॉज आई वांटेड टू स्टार्ट माई ओन थिंग एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन लाइफ. सो एज अ डिजाइनर ना दे विल रिस्ट्रिक्ट यू टू सैम्पलिंग, लाइक यू डिजाइन द प्रोडक्ट, रिसर्च, ब्रेन स्टॉर्मिंग, एवरीथिंग यू विल डू, बट दे विल नॉट अलाउ यू बियॉन्ड दैट. सेल्स कैसे हो रहा है, हाउ डू यू टॉक टू क्लाइंट्स, हाउ डज द कॉस्टिंग हैपन, नथिंग दे विल टेल यू. So to understand that, I ended up in a very good MNC, एकदम lavish बढ़िया जॉब जो होती है ना, जो ड्रीम जॉब होती है वैसा कि, and I was the only girl in the team. Okay. So I was pampered by all men. कि अरे नहीं 6 बज गए, 6:30 बज रहे, नहीं तू निकल, नहीं अगर बायर आ रहा है लेट रुकना, वील डू द यू नो द मर्चेंडाइजिंग एंड स्टफ, तू निकल, तू घर पहुँच टाइम से. सो आई वॉज वेरी हैप्पी कि अरे यार ये तो बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस, बहुत अच्छा चल रहा है एवरीथिंग. बट वहाँ पे आई स्टार्टेड मिसिंग डिजाइनिंग. Because designing is something I love. It's not something बस मैंने किया है. I love when I sit and I research and मुझे कुछ बनाना है. I love sketching and I love conceptualizing the products. So वो वहाँ पे missing था. And वहाँ पे I started taking freelance projects of graphic designing. Okay. Because in college they teach you basic color theory, basic software आपको आते हैं. So you are basic graphic design का काम आप कर सकते हो. सो मैंने कहा यार एक्स्ट्रा इनकम किसको बुरी लगती है, लेट्स डू इट. सो आई स्टार्टेड अर्निंग दैट, एंड वहाँ पे मैंने कहा यार अपना काम तो करना है. सो वहाँ पे ड्यूरिंग दिस होल प्रोसेस, लाइक 1 year वॉज माई फर्स्ट जॉब, सेकेंड ईयर वॉज आई थिंक 11 months से 10 months मैंने सेकेंड जॉब किया. सो ड्यूरिंग दिस होल प्रोसेस मुझे दिमाग में क्योंकि आ चुका था कि मुझे काम करना है लाइफ में कभी अपना बिजनेस, सो आई स्टार्टेड नोटिंग डाउन. मैंने एक डायरी बनाई अपने स्टार्टअप के नाम के, एंड उसमें आई स्टार्टेड राइटिंग नेम्स कि जब भी मैं करूँगी, क्या करूँगी वो पता नहीं है मुझे, बट आई नाम मैं सोचने लगी. सो आई हैड लिस्ट लालटेन. मुझे इतना पता था कि मुझे कुछ इंडियन नाम रखना है विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी कैची. सो द लिस्ट वॉज लालटेन, चारपाई, डब्बा एंड चौखट वॉज वन. उस टाइम पे एक सीरीज आई थी मिथिला पार्कर की, द गर्ल इन द सिटी, which was also about starting your own small business and being independent and stuff. So मुझे वो बहुत पसंद, मैंने वो भी लिखा था लिस्ट में, the girl in the city करके, and there was बक्सा and चौखट. So this was the whole list, and because अब मुझे यहाँ पे मज़ा नहीं आ रहा है, मैं ये सीख तो रही हूँ, but this is very clerical job. I'm missing what I was doing. So I ended up in third job, which was in GK. Pay scale was good, and I worked as a senior furniture designer there. Okay. It was 2 दिन का नौकरी, because I come from a background, and I come from I as a person मैं hard work से भागती नहीं हूँ. Right. Because जो first job में मैंने देखा कि मैं 24 घंटे लगी हुई हूँ, काम कर रही हूँ, and मैं उससे भागी नहीं, because I know that I have to earn. It's not like I can sit at home and chill and I'll see यार क्या करना life में. I don't have that privilege. Right. If you have it, it's good for you, but I did not have that. So I went to this office, and that office had some weird vibe. I don't know what, but something was weird. There was no male employee. Okay. The director was a male, और सारी employees female थी, and no female was a 6 months पुराना employee. So personal phones आपके allowed नहीं थे. You have to leave it at reception. I was like, something is fishy. I don't know, but it was something. As a girl, I think you have that kind of sixth sense कि कुछ तो इधर है गड़बड़. So ठीक है, okay. So I went there. Commode, I went to the washroom. Commode टूटा हुआ है, and मैं किसी को पूछूँ यार, how do you I mean you are girls, how do you use the washroom? So एक कह रही है कि मैं तो मैकडोनल्ड्स चली जाती हूँ. One is saying मेरा PG पास में है, मैं वहाँ चली. मैंने कहा ये what is happening? मतलब मुझे कुछ तो ऑफ लग रहा है यहाँ पे. ठीक है, फर्स्ट डे निकल गया, मैं घर बहुत कंफ्यूज गई कि आई डोंट नो व्हाट इज Was हैपनिंग. that company new or what? It was not new. It was a startup for sure. It was a very small, उन्हें एक घर लेके उन्होंने बनाया हुआ था. It was small, but they were I think 4 girls other than me. I was the senior, and something was going. I went to the director there, and he said that प्राची मुझे ना एक बहुत अच्छा सा टॉवल बनाना है, like 15,000 का एक टॉवल मिले. So I was like, Mohit, I'm a furniture designer. I'm not into textiles. It's okay, but we'll do it. And something was wrong. Like my heart could say something was wrong. So it was my second day. I was still in processing what is happening around me, and it suddenly stuck in my mind कि यार I think I should start. Maybe अगर मैंने अभी start नहीं किया, इसके बाद मैं कभी हिम्मत नहीं कर पाऊंगी लाइफ में, बिकॉज यहाँ पे तो आई कैन नॉट कंटिन्यू फॉर श्योर, क्योंकि मैं सुन रही हूँ कि किसी की सैलरी नहीं आ रही है, समथिंग मतलब कुछ ना कुछ गलत चल रहा था उधर. सो माई हार्ट सेड कि मे बी दिस इज, मतलब आई स्टिल रिमेंबर दैट मोमेंट वेरी क्लियरली इन माई माइंड. आई वॉज सिटिंग ऑन माई टेबल
और मुझे मुझे मोहित ने बुलाया कि यू नो दे आर कॉलिंग यू. सो आई वाज लाइक ओके, बट मैं ऐसे एकदम एकदम आई एम स्टक कि ओके maybe I think, and my heart was constantly saying I should start, I have to start, I have to start. I have no experience, no vendors, no networks, no money, I have to start. So I called up my friend, I said कि तू मुझे एक बार you know pick me up, and he came, and I just asked him कि यार you know should I start, do you think it's the right time? He said yes. So I was like okay. मैं घर गई, and मुझे पता था कि मैं कल इस ऑफिस में नहीं जा सकती हूँ. And for me, I had never in my life been jobless, not even for a day. Usually क्या होता है, आप ग्रेजुएट करते हो and then you start looking for jobs, placement मिली, you know, एक हफ्ता रुके हो, 10 दिन रुके हो, गैप आता है. आपको But इंटर्नशिप for में me, मिल गया. internship में मिल गया. So मैं एक दिन भी घर पे नहीं बैठी. तो मुझे वो jobless word was a इतना बड़ा word था वो मेरे मन में कि यार I'm jobless, I'm jobless, I'm jobless, कि मैं वो बर्दाश्त नहीं कर. अब मैं कब जॉब ढूंढूंगी, अब मुझे कब मिलेगी, अब मुझे नहीं मिलेगी. सो इट वॉज लाइक अ हॉरिफाइंग थिंग फॉर मी कि आई एम जॉबलेस, क्योंकि कल मैं यहाँ नहीं जा सकती फॉर श्योर. So I came home. We are 3 sisters. So एक मेरे से बड़ी बहन है, and I have a younger sister, and it's my mom, and I'm very close to my mom and my sisters. So I came home. My बड़ी बहन is 2 years elder than me, and she's earning. She was earning at that point of time also. So I came home. I was like यार दी मैं ना कल नहीं जा सकती, मुझे लगता है मुझे खुद का काम स्टार्ट करना चाहिए. So but उस टाइम पे मेरी EMIs थी. My you know I took a college के लिए I took an educational loan. So I was paying like a good amount of 13,000 का EMI monthly. So I was like मैं जॉब नहीं करूँगी, so EMI कैसे जाएगी, and I can't stop the EMI. So 100 of questions within myself. And my mom, she's like बेटा तू देख अभी तेरे पास में कुछ savings नहीं है, because I had just 1 lakh rupees of my savings of this whole पूरा 2 साल का you know job, and no experience, how will you do it? So she was like बेटा तुझे करना है तू कर, but तू एक बार सोच समझ के करो. Because my mom, she is a person, she has never stopped us from doing anything in life. कहाँ जाना है, क्यों जाना है, like अगर मैं कॉलेज भी बंक करूँगी, so my mom will know कि कॉलेज बंक करके इस मूवी में ये मूवी देखने गए हैं. शी हैज़ बीन अ फ्रेंड टू अस, ऑल 3 ऑफ अस, ऑलवेज. आई थिंक यू रेयरली गेट दैट काइंड ऑफ अ पर्सनैलिटी, बिकॉज आई थिंक उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ अपनी लाइफ में नहीं मिली. सो उन्होंने हम तीनों बेटियों को हमेशा से वो अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं. शी हैज़ नेवर बीन अ काइंड ऑफ पर्सनैलिटी कि यू नो घर का काम करो या तुम खाना बनाना सीखो पहले, या वो शी इज़ लाइक ये सब तुम सीख लोगे बेटा, यू नीड टू यू नो यू आपको अपने 2 पैरों पे खड़े होना पहले सीखना है. I can't relate more because my mother is the same. The same. You won't believe I'm 23 years old. I haven't yet stepped my like pair into the kitchen. Because she's like कि ये सब हो life जाएगा, will teach you. सीख लोगे, right? You need to be independent and you need to stand on your own 2 feet. So I could just relate so much there कि this is the same here. And right? I think we are lucky in that case, Right. because I have seen people जो जिनको वो घर से वो सपोर्ट नहीं मिलता. Correct. सो माई मॉम का पर्सपेक्टिव इज कि सीखो, घर का काम करना आना चाहिए, बट दिस इज़ योर एज टू मेक योर करियर. घर का काम तुम 40 के बाद भी सीख लोगे. इट इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस. वॉट यूर डूइंग इज रॉकेट साइंस. सो माई एल्डर सिस्टर मृदुला, शी इज़ लाइक प्राची तू टेंशन मत ले, तेरी EMI मैं देखूंगी, अगर तुझे लगता है कि तू कर सकती है गिव इट अ शॉट. ठीक है. सो आई वाज लाइक ओके ठीक है. सो घर वाले यार थोड़ा सा कंफ्यूज बट दे आर पॉजिटिव. सो नेक्स्ट डे आई वोक अप, एंड आई थिंक बाय गॉड्स ग्रेस, बिकॉज आई रियली बिलीव दैट देयर इज़ अ हायर पावर. मैं हनुमान जी में बहुत मानती हूँ. सो आई बिलीव दैट देयर इज़ दिस हायर पावर जो आपसे ये कराती है. इट्स नॉट अस हु आर डूइंग इट, इट्स ही हु इज़ मेकिंग अस डू इट फॉर आवर ओन गुड, बिकॉज दिस वॉज नॉट अ प्लान थिंग फॉर मी. फॉर मी दिस वॉज 2024 2025 जब मैं अपना कुछ स्टार्ट करूँगी, वो पैसा जमा करके एक्सपीरियंस लेके यू नो लाइक जो है आप एक आई थिंक एक बुकिश लैंग्वेज में पढ़ते हो ना कि ये ऐसे होता है स्टार्टअप, ऐसे करते हो बिजनेस, कुछ साल का एक्सपीरियंस लेके फंड जोड़ के नेटवर्क करके फिर स्टार्ट करो. सो मेरे लिए उसमें सब कुछ ही वीक था. सो आई स्टार्टेड. नेक्स्ट डे आई वोक अप, एंड बाय चांस इट वॉज गणेश चतुर्थी. I never celebrated Ganesh Chaturthi in my life because I believe in one God, and I pray to him always. That's when I started relating, maybe क्योंकि इंडिया में द कल्चर इज़ कि आप हर चीज़ की शुरुआत गणेश जी से करते हो, एंड मेरी एक्सीडेंटली शुरू हुई है. सो आई वॉज समथिंग देयर इन मी सेट दैट इससे पॉजिटिव कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज दिस वॉज नॉट प्लान्ड एट ऑल. आई वोक अप, आई सेंट एन ईमेल सेइंग कि भाई मैं नहीं कर सकती हूँ यहाँ पे काम बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंट, आई कैन नॉट कम, एंड आई रिजाइंड उस दिन मेरे दिमाग में अब नाम का लिस्ट तो मेरे पास में था. नाम क्या रखना है कंपनी का, सबसे पहले करूँगी मैं क्या फील्ड करूँगी, क्या करूँगी. सो लिस्ट में से एक एक करके मैंने गूगल करा, जो मुझे रिलेटेबल मिल गया. जैसे लालटेन, सो देयर वाज दिस लालटेन का कैफ़े, कुछ चारपाई भी है, सब चीज़. तो जो अवेलेबल था मैं उसको क्रॉस करती गई, एंड वी शॉर्ट लिस्टेड टू बक्सा एंड चौखट.
दोनों ही अच्छे लग रहे हैं मुझे। दोनों अच्छे, मुझे बक्सा ज़्यादा पसंद आ रहा था, I'll be honest, at that point of time. This is 2018 in September. Okay, 13 September, I still remember 13 September 2018 was Ganesh Chaturthi when I started. And मैंने अपने फ्रेंड्स को एंड अपनी फैमिली को बोला भी तुम वोट करो नाम पे एंड वील स्टार्ट. सो एवरीबडी वोटेड फॉर चौखट. हालांकि मुझे पर्सनली बक्सा पसंद आ रहा था, बट आई सेड कि यार ये कस्टमर्स हैं, इनको जो पसंद आ रहा है विल कीप दैट नेम. सो आई स्टार्टेड विद चौखट एज अ नेम. एक इंस्टाग्राम मैंने पेज बनाया एंड आई ऑल्सो, बिकॉज मैं पहले से एज अ फ्रीलांस ग्राफिक डिज़ाइनर काम कर रही थी, सो आई थॉट दैट मे बी दिस इज़ वन वे ऑफ ऑल्सो डूइंग इट. लेट मी वर्क एज अ फ्रीलांसर so that I can earn something and I put it in Chocolate, because there is no back in the family जो मुझे बोले कि ये ले बेटा 5 लाख रुपए जा काम कर, या ये इवन ले 50,000 रुपए जा काम कर. there is no, क्योंकि वो मेरे को मम्मी ने क्लियरली बोल दिया था कि बेटा तुझे पता है, मुझे बोलने की ज़रूरत भी नहीं है, यू हैव टू थिंक कि कैसे होगा. एंड सो मैंने कहा ठीक है, ओके नहीं है, सो आई ऑल फ्रॉम देयर आई पुट इट हियर. एंड आई हैड 1 लाख रुपीज़ का सेविंग ऑलरेडी एंड मेरा FNF आया था 45,000 रुपीज़. सो 1,45,000 मेरे पास में थे. सो मैंने डिज़ाइनिंग स्टार्ट करी एंड मैंने स्टार्ट किया. फर्नीचर आई कैन नॉट डू, बिकॉज फर्नीचर का अगर आपको एक सोफ़ा या एक डाइनिंग टेबल बनाने जाना है वो 1 लाख रुपये वहीं चला जाएगा, ख़त्म. आई कैंट डू इट. So I thought maybe starting with a smaller product will help me. Maybe something like fruit baskets, something like trays and jars and stuff. And since I had been into export for 2 years, so I knew कि ये एक gap है Indian market में, because अगर आप बाहर के products देखो, they are made in India, they are designed in India, they are exported, everything is happening in India, but they are not being sold in India. Why? For some reason they are not being sold. So what at that point of time I understood is कि अगर आप बाहर की designing देखो, so they celebrate nature. If you see bahar ke festivals, they celebrate Christmas, so you'll see trees around, you'll see deers, reindeers, Santa Claus, and they celebrate nature and animals and nature a lot. If you see Easter, you'll see bunnies there, तो हर चीज़ उनकी relatable. यहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा superstitions हैं कि घर में अगर घोड़े हैं तो 7 घोड़े होने चाहिए, घर में अगर टर्टल है तो वो खुद का खरीदा हुआ नहीं होना चाहिए, गिफ्ट होना चाहिए. सो आई थिंक मे बी बिकॉज ऑफ दैट हमारे इंडिया में वो प्रोडक्ट्स नहीं चलते. बट आई फेल्ट दैट अब जो जनरेशन आ रही है, पीपल हु आर अर्निंग, दे वांट इट. वो तो सुपरस्टिशियस नहीं है कि आप ये मत करो, अब दे आर लाइक यार बिंदास लाइफ, वी वांट इट, अच्छा लग रहा है, इट्स इन बजट, लेट्स डू इट. सो वन थिंग वाज दैट. द अदर थिंग वाज कि दैट वाज फॉर माई पर्सनल एक्सपीरियंस, दैट जब आपको कोई चीज़ पसंद आती है, बीइंग फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, आप ना एक चीज़ बचपन से सुनते हो. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बैग लेना है, फुटवेयर लेना है, लैम्प लेना है, मैं कह रही हूँ, सो आप बोलोगे मम्मी वो देखना कितना सुंदर है, शी लाइक रहने दे बेटा, डिज़ाइनर है, महंगा होगा. सो वो माइंडसेट आपके बचपन से होता है कि डिज़ाइनर है तो महंगा होगा. इट्स सेड, एंड टू सम पॉइंट ऑफ आई थिंक टू सम एक्सटेंट इट इज़ ट्रू. I felt that I am a designer. It's my job to bring that in cost, because सी अगर ये कप आपको बनाना है, ये कप के ऊपर आप गोल्ड प्लेटिंग करा के इसको बहुत महंगा सा ब्रास में बनवा दोगे तो ये महंगा हो जाएगा. विल बी लाइक वाओ, ब्रास का कप है. इसको ये काम कोई भी कर सकता है, इसको कॉस्ट में कैसे लाना है, अफोर्डेबल कैसे बनाना है, दैट्स माई जॉब. सो आई फेल्ट दैट यार डिज़ाइनर्स के लिए जॉब ही यही है. आई हैव दैट स्किल दैट आई कैन क्रिएट गुड प्रोडक्ट्स इन एन अफोर्डेबल रेंज. सो आई स्टार्टेड विद दीज 2 बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ माई लाइफ, that I will create something which is affordable for middle class families, जिसको उनको खरीदने से पहले सोचना नहीं पड़े. बिकॉज मिडिल क्लास फैमिली क्या करती है ना, अपने पूरे उनके लाइफ की सेविंग्स सिर्फ 2 जगह पे खर्चते हैं, एक घर बनाने पे, एक बेटी की शादी पे, दैट्स ऑल, ख़त्म. इसके आगे वो लोग कुछ सोचते ही नहीं है कि क्या करना है. सो अब बेटी की शादी का तो मैं कुछ नहीं कर सकती, बट घर का मैं कर सकती हूँ. सो आई स्टार्टेड विद दिस कि यार आई विल क्रिएट good products which are inspired by nature, because I feel that as a human I was not a dog, I was not an animal lover at all. Okay. I was generally a nice human who don't want to hurt animals. That's all. But this doesn't mean that I'm helping animals. I'm not feeding my stray dogs. मैं देख रही हूँ but मेरा ध्यान ही नहीं गया कभी कि वो यार वो लोग इतना भूखा है कि इनको खाना मिल जाता होगा पर उनको नहीं मिलता. So वो चीज़ें मुझे कभी रियलाइज़ नहीं हुई. Then I had a dog in my house. हम उसको लेके आए मर्फी को. So वहाँ से I started realizing मैं उतना ज़्यादा एनिमल लवर नहीं थी in the start of चौखट जितना मैं अब हूँ. Okay. So I started with this basic यार animals is a good design concept which is being accepted in India. So उसी से start किया था मैंने. But after an year and gradually my love for animals grew. I started realizing that people around us are they're non-humans toward animals. Like I am a vegetarian, okay, I'm not a vegan, I'm a vegetarian. But ये सब चीज़ें मुझे किसी ने बताई ही नहीं कि vegan क्या होता है.
कि जो दूध आ रहा है वो कैसे आ रहा है, वो क्यों आ रहा है, उसके पीछे चल क्या रहा है। और एज अ चाइल्ड, एज अ आई वुड से टीनेजर, कभी मैंने सोचा भी नहीं इन चीज़ों के बारे में, बिकॉज आई थिंक आवर एजुकेशन सिस्टम डज नॉट सपोर्ट दैट। वो अलग ही अपना हिस्ट्री और वो सब पढ़ाने में लगे हुए हैं। प्रेजेंट नोबडी टीचेज यू, दैट लाइफ टीचेज यू। सो मैंने वहाँ से अपना बिजनेस स्टार्ट किया, एंड ये जो एनिमल का लव है, आई कम टू दिस आफ्टरवर्ड्स। एंड सो आई वॉज 23 व्हेन आई स्टार्टेड, एंड फॉर 23 ओल्ड गर्ल जिसको कोई नॉलेज नहीं है बिजनेस की, कोई बैकग्राउंड नहीं है, मेरा एक माइंडसेट था कि यार मैं प्रोडक्ट रेंज करूँ, 10 प्रोडक्ट से मैं स्टार्ट करूँगी, आई विल मेक अ वेबसाइट। और यार 150 करोड़ की आबादी है इंडिया की, दिन का 3 प्रोडक्ट तो आ ही जाए, 3 ऑर्डर तो आ ही जाएगा, नॉट अ बिग थिंग। लाइक ओके ठीक है। इस माइंडसेट से मैंने अपना प्रोडक्ट बनाया। एंड प्रोडक्ट बनाना इज़ नॉट ईजी, लाइक मैं रात को 2-2 बजे तक, बिकॉज आई हैड लेफ्ट जॉब, मेरे पास कोई अब सैलरी नहीं आ रही थी, सो मैं रात को 2-2 3-3 बजे तक बैठी हुई So हूँ। you were designing the whole of it? Yes, I was Then you were designing. getting it manufactured? Yes, yes. So I started with my own dining table because मेरे पास पैसा नहीं था कि मैं रेंट आउट करूँ स्पेस। So I was like यार लाइबिलिटी नहीं बनानी है, घर से करेंगे। So I started sketching and I created 10 products. एक फ्रूट बास्केट, 2-3 ट्रेज, 1 जार एंड But उसमें quantity का issue नहीं आया? आया। सो आई स्टार्टेड कि ये है, अब मैंने स्केचिंग कर दिया है, मैंने प्रोडक्शन ड्राइंग रेडी कर दिया, उसको बनाएगा कौन? ओके। सो द काइंड ऑफ वेंडर्स आई वाज वर्किंग विद, जब मैं जॉब करती थी वो सुनेंगे भी नहीं, बिकॉज दे आर डूइंग, एक होता है MOQ, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। सो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी वो चलती है उनकी 1000, 2000, 10,000। सो वो मुझे घास भी नहीं डालेंगे। सो आई वाज लाइक ठीक है, सो अब ढूंढेंगे कैसे? सो मैं इंडिया मार्ट पे गई, इंडिया मार्ट में मैंने ढूंढा प्रोडक्ट कहाँ मिलता है, क्या मिलता है, स्टार्टेड मेकिंग रैंडम कॉल्स। सो वहाँ पे कहीं बात नहीं बन रही है, कहीं पे ओके हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे एक जगह मुझे मिली, दिस वॉज इन सीलमपुर। ओके। एंड सीलमपुर में कुछ कुछ एरियाज इफ़ यू फील वो थोड़ी शेडी प्लेसेस हैं, एंड एज अ गर्ल यू माइट नॉट फील सेफ टू गो। चलो वो तो एक अलग बात है, और पेरेंट्स विल नॉट फील सेफ इफ़ यू आर गोइंग देयर अलोन। एंड मेरे पास में मेरी स्कूटी थी बस, तो मैं अपनी स्कूटी पे हर जगह गई हूँ, पूरे दिल्ली के चक्कर मैंने अपनी स्कूटी पे काटे। लाइक आई हैव कैरिड दिस बिग रोल्स ऑफ फोम एंड यू नो बबल्स ऑन माई स्कूटी। सो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया, एंड आई मेट अ पर्सन जिन्होंने कहा ठीक है हम बनाएंगे। सो मैंने कहा पैसे बहुत लिमिटेड है, 10 डिज़ाइन हैं, 10 डिज़ाइंस का पर डिज़ाइन आप 10 ही पीस बनाओ। Okay. सो उस टाइम पे ना आपको ज़्यादा लोग एंटरटेन नहीं करते, क्योंकि एक तो आप 23 साल की लड़की हो, जिनसे आप काम कराना चाह रहे हो उनको 23 साल का एक्सपीरियंस है वर्क का, तो वो वैसे आपको घास नहीं डालते कि ये 23-24 साल की लड़की सी आ गई है और ये क्या ही कर लेगी और ये पता नहीं काम देगी, दिमाग और खा जाएगी। सो वो वहाँ पे कहीं ना कहीं जेंडर बायसनेस थोड़ी सी आती है, बट ज़्यादा बायसनेस आपकी एज को लेके होती है, क्योंकि अगर कोई लड़का भी जाएगा ना 23 साल का, उसको भी सेम ट्रीटमेंट मिलेगी, थोड़ा सा शायद कम मिले पर मिलेगा ज़रूर, कि तुम हमें मत बताओ क्या करना है, उस टाइप का एटीट्यूड। सो वहाँ पे ही अग्रीड कि चलो विल मेक इट। एंड देन एक होता है प्रोडक्ट डिज़ाइन, एक होता है सैम्पलिंग, एक होता है उसका प्रोडक्शन, एक होता है कोटिंग, देन कम्स पैकिंग, देन कम्स सेलिंग। सो ये सारा प्रोसेस खुद करना है आपको, बिकॉज यू आर ऑल अलोन। सो वो बनाने को रेडी हो गए, एंड आई वाज लाइक ठीक है ही बना देंगे। एंड इट वॉज अ वेरी स्मॉल वर्कशॉप, सो ही विल नॉट गिव मी अ फाइनल प्रोडक्ट, ही विल जस्ट गिव मी अ रॉ प्रोडक्ट। Okay. कि उन्होंने लोहे का ट्रे बना दिया है, लोहे का बास्केट बना दिया, इसके ऊपर कोटिंग कैसे करानी है। ओके कोटिंग कैसे करानी है, अब कंफ्यूज हो रही हूँ मैं, कोटिंग की कौन सी कोटिंग होती है मुझे पता नहीं चल पा रहा, बिकॉज आई जस्ट हैड 2 years का एक्सपीरियंस। उसमें मुझे बेसिक नॉलेज थी कि यू नो हाउ डज दिस थिंग वर्क, बट क्योंकि मेरा जो बिजनेस माइंडसेट था वो मेरी जॉब की स्टार्टिंग में नहीं था, वो बाद में आया, तो मैंने ध्यान नहीं दिया उतना उस माइंडसेट से कि अरे कौन सी कोटिंग है, पैकेट खोल के देख लेती हूँ कौन सा क्या पाउडर डल रहा है या कौन सा पेंट हो रहा है, ध्यान ही नहीं दिया। सो मैंने उनसे हेल्प मांगी कि जो मेरा कारीगर थे कि आप बताओ कोटिंग कहाँ करा सकते हैं, इन्होंने कहा मैं करा दूंगा। मैंने कहा ठीक है, आई सेड कि क्या कराना है, गोल्ड प्लेट, गोल्ड कोट पाउडर कोट करा दो आप, क्योंकि गोल्ड इज़ द कलर जो सब घर में कॉमनली चल जाता है। इट्स नॉट लाइक यू, आपका अगर कंटेम्प्रेरी हाउस है, मॉडर्न है, रस्टिक है, गोल्ड विल फिट एवरीवेयर। सो मैंने कहा ठीक है आप बना के इसको गोल्ड करा दो, ठीक है। एंड फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ उन्होंने सैम्पल्स बनाए, सैम्पल मुझे ठीक लगे, मैंने कहा ठीक है प्रोडक्शन बनाओ 10-10 पीस। ही लाइक ठीक है सैम्पल का चार्ज आएगा, ये बातें हमारी पहले हुई नहीं, मुझे पता ही नहीं कि सैम्पल का चार्ज होता है। मैंने कहा कितना, ही लाइक 15,000। एंड आई स्टिल रिमेंबर दैट 15,000 वॉज लाइक 15,000 रुपये, बिकॉज मेरे पास 1 ही लाख रुपये हैं, 15,000 ये ले जाएंगे, प्रोडक्शन भी है, वेबसाइट भी है, कैसे करूँगी मैं। सो मैंने कहा प्लीज़ ऐसे मत करो, 15,000 रुपये तो मैं नहीं दे सकती हूँ, आपने मुझे पहले नहीं बताया, पहले बताया होता ये, कह रहे ठीक है 10 दे दो। सो आई कुड सी कि वो ऐसे कुछ भी अमाउंट बोल रहा है, उसका खर्चा हुआ नहीं है 15,000 रुपये का। सो बट आई पेड हिम 10,000 बिकॉज अभी मुझे पास में एक ही सहारा है मेरा।
एंड ये पूरा सब चल रहा है, वो हैप्पी की चलो प्रोडक्शन हो रही है, मीन टाइम मैं ना अपनी वेबसाइट बनाने लग जाती हूँ. सो वेबसाइट के लिए आई मेड अ वेरी बेसिक डायनेमिक वर्डप्रेस के ऊपर मैंने एक वेबसाइट बनवाई एंड दैट पर्सन चार्ज मी 15,000 रुपीज़. आई वाज लाइक ठीक है 15,000 का बेसिक वेबसाइट बन जाएगा. बट दिस इज वेरी एक्सपेंसिव. सो बन गया. उस टाइम के लिए तो सब कुछ वॉज एक्सपेंसिव उस टाइम के लिए. तो नहीं, आई मेरे लिए थिंक तो ये अभी भी एक्सपेंसिव है बिकॉज कि इस 15,000 रुपये. समय वेबसाइट इज बट 15,000 that. इस टाइम पे कोई 15,000 में वेबसाइट नहीं बनाने को तैयार है. मैं दे contact विल दूं? चार्ज यू 30-35. लाइक नो, आई विल गिव यू contacts oh my less than god, 15,000. I made my own website then. I'll come to that story ना. So मैंने उनसे बनवाया अपना फर्स्ट वेबसाइट. 15,000 मैंने दी है. दैट पर्सन वाज वेरी नाइस. Okay. मतलब एज अ ह्यूमन ही वाज अ वेरी नाइस पर्सन. कि कुछ चेंजेस वगैरह करना आई कैन गिव हिम अ कॉल, विल फिक्स इट. बट अब मैं उसको बार बार नहीं कर सकती हूँ कॉल बिकॉज ही विल चार्ज मी, ही इज़ वर्किंग फॉर मी. सो वो एक एनुअल अपना फीस या मंथली एक फीस he'll टेक इट. सो आई लर्नड कि बैक एंड पे करते कैसे हैं. हाउ डू यू अपलोड प्रोडक्ट्स, हाउ डू यू राइट द राइट अप, हाउ डू यू अपडेट प्राइजेस, हाउ डू यू अपडेट इन्वेंट्री. वो सब मैंने खुद बैक एंड मैनेज करना स्टार्ट करा. एंड ये पूरे दौरान में मेरी वेबसाइट रेडी हो गई, बेसिक सब कुछ हो गया. लोगो मैंने खुद ही बनाया बेसिक का क्योंकि मुझे आता था चौखट और ये बनाना थोड़ा सा फोटोशॉप कोरल ड्रॉ मैंने बना दिया. एक बेसिक सा मरून कलर का लोगो, बस खत्म. हिंदी में चौखट लिखा हुआ है इसके ऊपर. ओके. प्रोडक्ट्स आने थे किसी डेट पे एंड वो जो प्रोडक्शन थी इट वॉज 45 डेज लेट एंड दैट पर्सन वॉज नॉट इवन टेलिंग मी मैं कब दूंगा. मैं कॉल करी हूँ, हाँ हम कर रहे हैं. मैं कॉल करी हूँ, हाँ हम कर रहे हैं. कॉल करी हूँ. एंड यार उस टाइम पे जब मैं सब कुछ छोड़ के बैठी हूँ अपनी ज़िंदगी में, मेरे लिए एक एक दिन काटना बहुत मुश्किल है कि यार मुझे एटलीस्ट डेट दे दो, मुझे लॉन्च करना है. 3 महीना हो गया मेरे पास कोई पैसा नहीं आया अकाउंट में, सिर्फ जाता जा रहा है. सो जो भी है आई क्राइड एंड वाज लाइक यार क्या हो रहा है, मैंने क्या कर लिया. ये आई थिंक आपके दिमाग में हर दिन आता है. सो बट मैंने जब स्टार्ट किया था मैंने अपने आप को 2 साल का डेडलाइन भी दिया था कि अगर 2 साल में मैं कुछ नहीं कर पाई इस बिजनेस का कुछ एक स्टेबल इनकम, आई विल गेट बैक टू जॉब. बिकॉज आई डोंट कम फ्रॉम बैकग्राउंड कि मैं इसको पैसा देती रहूँ, डालती जाऊँ, ये मुझे देगा नहीं. सो इट हैज़ टू रन ऑन इट्स ओन. सो जो भी है 45 डेज़ के बाद वो टाइम आया जब मुझे मेरी प्रोडक्शन मिलनी थी, बहुत बड़ी प्रोडक्शन 10-10 पीस की. आई वेंट देयर एंड आई सॉ कि जो कोटिंग है वो पूरी ख़राब है, उसके अंदर रस्ट आया हुआ है, तो वो पपड़ी बन चुकी है. वो जो कोटिंग है ना वो रस्ट निकल के वो निकल रही है. और जो ट्रेज है वो हमारी उसका बेस टेढ़ा हुआ है. और मैं देख रही हूँ कि ये क्या है. मतलब मुझे उस टाइम पे पता ही नहीं था कि अब क्या करना है. अब इसके पैसे काटने हैं, नहीं काटने हैं, इसको ठीक कराना है, इसको चलाना है, हाउ डू आई प्रोसीड. एंड एज अ गर्ल मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ एज अ पर्सन इन लाइफ. बीट माई जॉब, बीट माई करियर, बीट माई पर्सनल, आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन. सो मेरी आंखों में बिल्कुल आंसू थे कि अब मुझे कोई बताने वाला भी तो नहीं है ना कि क्या करना है, क्योंकि घर में तो किसी को पता ही नहीं है कि बिज़नेस क्या होता है, मैं किसको पूछूं. सो वो सिचुएशन में मैं फंसी. जो भी है प्रोसीड किया, मेरे घर वालों ने थोड़ा समझाया कि इसके तू पैसे काट, हम नहीं देंगे पैसे, एंड एवरीथिंग हैपेंड. एंड ठीक है, उस सिचुएशन से मैं बाहर निकली. तो वो ख़राब सामान पैसे काट के उसका जो भी वो रस्टेड सामान था वो मैं घर लेके आई अपने. एंड मैंने दिमाग लगाया कि अब मेरे पास में पीस है, कुछ तो करना पड़ेगा. आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर पाउडर कोटिंग के प्रोडक्ट्स, कौन ठीक कर सकता है, क्या है. आई मेट समबडी इन नोएडा. मैं सारा सामान अपनी स्कूटी पे डाल के पूरा वो रोल बना के सब उसको दे के आई. ही फिक्स्ड इट. मैंने कहा चलो. आई लॉन्च माई वेबसाइट ऑन जनवरी 19. ठीक है. अब मेरा कॉन्सेप्ट था 150 करोड़ के बाद ही 3 ऑर्डर पर डे, बट दिस वॉज नॉट वर्किंग क्योंकि ये एक भी ऑर्डर नहीं आ रहा. मतलब फर्स्ट मंथ निकल गया, एक ऑर्डर था सिर्फ, वो भी मेरे कॉलेज की जूनियर से था, बस कोई ऑर्डर नहीं है. सेकंड मंथ निकल गया, कोई ऑर्डर नहीं है. थर्ड मंथ आ गया, 2 ऑर्डर है. मुझे समझ नहीं आ रहा कि व्हाट इज़ हैपनिंग, कि करना क्या है. तब मुझे किसी ने बताया कि तू मार्केटिंग करेगी नहीं तो प्रोडक्ट का कोई वेबसाइट, करोड़ों वेबसाइट्स हैं गूगल पे, हाउ विल समबडी लैंड टू योर वेबसाइट. आई वाज लाइक ओके, अब मैं किसी डिजिटल मार्केटिंग को हायर करूँगी, सो पैसा देना पड़ेगा, वो जो कि नहीं है. एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू पैसा नहीं है. सो आई स्टार्टेड लर्निंग यूट्यूब में एड्स ऐसे रन करते हैं, मेटा की जो एड्स आज होती है फेसबुक इंस्टाग्राम की, हाउ डू यू रन इट, क्या बजट है, क्या एवरीथिंग. सो यूट्यूब के ट्यूटोरियल से मैंने सीखा. बिकॉज मेरे पास में जब मुझे लगता है आपके पास मजबूरी है ना, तब आप सब इट्स लाइक आपको किसी ने पानी में फेंक दिया, आपको तैरना नहीं आता, बट आप डूब जाओगे तो आप सीख लेते हो. सो दैट्स द सेम कॉन्सेप्ट विद बिजनेस. आपको नहीं आता बट इवेंचुअली यू विल लर्न. सो आई स्टार्टेड लर्निंग दैट. आई स्टार्टेड रनिंग एड्स. एंड उस टाइम पे ना 40 रुपीज़ पर डे वॉज द मिनिमम. इससे नीचे आप नहीं चला सकते हो. आज वो 83 रुपीज़ आई थिंक. सो 40 रुपीज़ से मैंने स्टार्ट किया कि ठीक है इतना मैं लगा सकती हूँ, 40 रुपये एक दिन का मैं दे के देखती हूँ क्या होता है. सो वहाँ से मैंने एड्स सीखी, सेल्स की कैसे रन करनी है, यू रन ट्रैफिक एड्स, बहुत तरीके की एड्स होती हैं, क्या डिफ्रेंसिएशन है उनमें, मुझे रन कौन सी करनी है. बिकॉज अब एज अ बिजनेस पर्सन आपको पता होना चाहिए कि आपका टारगेट ऑडियंस कहाँ है. आप बेच तो रहे हो, आपके दिमाग में एक फिगर है कि यार ये आई टाइप का आदमी खरीदेगा, पर वो खरीद रहे हैं कि नहीं.
सो वो मैंने अलग अलग जगह पे ऑल इंडिया रन करी, कुछ मैंने टीयर 1 सिटीज़ रन करी कि मुंबई, तमिलनाडु, बैंगलोर, यहाँ पे। सो धीरे धीरे ग्रेजुअली आई स्टार्टेड लर्निंग कि ये मेरे डेमोग्राफिक्स हैं, ये टाइप के लोग, ये यहाँ रहने वाले लोग मेरा सामान खरीदते हैं, ठीक है। धीरे धीरे देन कोविड गेम आफ्टर एन ईयर, जब मैं बस समझ ही रही थी कि क्या हो रहा है, कोविड आ गया। बट लकीली आई वुड से कोविड हेल्प्ड मी understand my own business better and also it helped my business as a category because उस टाइम पे आप सब घर पे हो एंड घर पे आप बहुत विले हो, काम नहीं है, कोई वेब सीरीज़ नहीं आ रही, मूवीज़ नहीं बन रही, कुछ नहीं है। सो इट वॉज इंस्टाग्राम जो लोग स्क्रॉल कर रहे हैं कि यार कुछ मिल जाए। सो उस टाइम पे मैंने अपने ऐड का बजट डबल करा, 40 से आई स्टार्टेड रनिंग एट 60 रुपीज़ 80 रुपीज़, बिकॉज अब लोग देख रहे हैं, लोग सारा दिन वही देख रहे हैं, तो दिल सी माई ऐड, ओके ऐड रन करिए। उस टाइम पे ना स्क्रीनशॉट वाली गेम्स चली थी कि यू नो दिस बाउल, इसमें फ्रूट्स गिर रहे हैं, जब मैक्सिमम फ्रूट्स आप स्क्रीनशॉट लो विल सेंड यू फ्री गिफ्ट। सो उस टाइप के मैं आई हैड इंटर्न बिकॉज वो कॉलेज के इंटर्न्स मैंने रखे थे। सो वो उन्होंने उनसे मैंने एड्स बनवाया और मैंने ये टाइप की चीज़ें रन करी एंड इट गेव मी माई बिजनेस अ गुड बूस्ट। कोविड गेव मी बिकॉज उस टाइम पे ना अगर आप वेले हो, आप अपने घर पे लोगों ने गौर करना स्टार्ट करा कि यार ये साइड टेबल पे ना एक लैम्प होना चाहिए। उससे पहले आप इतने बिजी हो अपने लाइफ में, आप सुबह जा रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, आ रहे हो, कर रहे हो, यू हैव नो टाइम टू थिंक अबाउट इट। सो वो मैं आई थिंक माई बिकॉज माई प्रोडक्ट्स वर आई कैची, सो वहाँ से धीरे 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 ग्रेजुअली भी स्टार्टेड यू नो बढ़ना। एंड इसमें 2 साल तक में मैं साइड बाई साइड एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर भी काम करती रही ताकि कुछ इनकम रहे मेरे पास में। वो कुछ इनकम मेरी सैलरी जितनी इनकम नहीं थी, बट इट वॉज ओके टू एटलीस्ट सपोर्ट माई ओन खर्चाज। सो मैं करने लगी 2 साल हो गए। 2 साल में मुझे रियलाइज़ हुआ कि ठीक है, चौखट इज़ समथिंग दैट आई कैन डू, ये समझ आ रहा है, इससे मैं पैसा कमा सकती हूँ। नाउ लेट्स ड्रॉप द ग्राफिक डिज़ाइनिंग पार्ट। सो आई ड्रॉप द ग्राफिक डिज़ाइनिंग पार्ट एंड मैंने इसको फुल टाइम लिया इसको। एंड आई थिंक वहाँ से मुझे फिर भी 3 साल लगा समझने में कि मुझे एग्जैक्टली होम डेकोर में क्या करना है। बिकॉज जब आपके पास में एक एक ऑर्डर आ रहा होता है, उसमें रिटर्न्स भी आ रहे हैं, उसमें कैंसिलेशंस भी आ रही है, उसमें कुछ टूट भी रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, तो आपको लगता है यार इससे कब तक पैसा आएगा, कुछ ना बल्क ऑर्डर आने चाहिए। सो मैं थोड़ा थोड़ा वेडिंग में घुस गई, थोड़ा थोड़ा मैंने कॉर्पोरेट में एंटर करा। बट मेरे को रियलाइज़ हुआ कि ये जो वेडिंग और ये जो कॉर्पोरेट है, दिस इज़ अ डिस्ट्रैक्शन फॉर मी। मैंने अपना बिजनेस एक रीज़न से स्टार्ट किया था कि मिडिल क्लास पर्सन को मैं अफोर्डेबल प्रोडक्ट दे पाऊँ। दैट इज़ द कोर ऑफ इट एंड दैट्स व्हाट आई वांट टू डू, दैट्स व्हाट आई मेंट टू डू। तो मैंने इसको बहुत मैंने टाइम वेस्ट किया इसमें, कॉर्पोरेट के लिए गिफ्ट्स बनवाऊँ, उनको रीच आउट कर, वेडिंग के लिए मैं हैम्पर्स बनवा रही हूँ, मिठाइयाँ ला रही हूँ, नो सोर्स कर रही हूँ, नॉनसेंस। नाउ आई फील कि यार मैंने उसमें काफ़ी पैसा बर्बाद किया सैम्पलिंग में। बट देन आफ्टर 3 years आई वाज श्योर कि ये करना है एंड मैंने इंटर्न्स हायर करना स्टार्ट करा धीरे धीरे। अब उस बंदे के पास मैं वापस ही जा सकती थी जिसने मेरा सामान ख़राब कर दिया था। सो आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर न्यू प्रोडक्ट, न्यू वेंडर्स कि कौन बनाएगा, क्या करेगा। एंड आई फाउंड वन पर्सन हु बिलीव्ड इन मी थोड़ा सा, ही मेड माई प्रोडक्ट्स एंड उनसे मेरा काम स्टार्ट हुआ। शाहिद जी उनका नाम था, आई स्टिल रिमेंबर। एंड आई थिंक ही वॉज अ पर्सन, उनकी कारीगरी बहुत अच्छी थी, ही अंडरस्टूड कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। सो इनिशियली बहुत छोटे छोटे इंसिडेंट होते रहे, कई बार वो मेरे पे चिल्ला देते थे। सो मैं सोचती थी कि यार मैं क्लाइंट हूँ, मम्मी मेरे पे चिल्ला रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे काम कर रहा है। सो माई मॉम यूज टू टेल मी कि बेटा आज तुझे उनकी ज़रूरत है, सो वो चिल्ला रहे हैं, कल को तुझे ज़रूरत नहीं होगी, उनको ज़रूरत होगी तेरी, क्योंकि तुमको काम देगी। सबका टाइम आता है, जस्ट बी पेशेंट ड्यूरिंग द होल प्रोसेस। सो स्कूटी पे जाना हर जगह, पैकिंग, मेरी मॉम ने मेरी बहुत हेल्प करी है बिकॉज ऑर्डर आएगा, ऑर्डर को पैक कैसे करना है, तो मैंने अमेज़ॉन से सामान ऑर्डर करा, उसको सीखा कि अच्छा ऐसे पैक करना होता है, ओके रिटर्न क्या करना है। तो ये सब चीज़ें धीरे 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 स्टार्ट करा। 2-2.5 साल आई थिंक निकल गए एंड आई हैड सर्टेन अमाउंट ऑफ इनकम इन माई हैंड कि मैं एक ऑफिस रेंट पे ले सकती हूँ बिकॉज आई नीड स्पेस ना। घर का तो मैंने कबाड़ खाना बना दिया था, पूरा घर में गत्ते हैं, फोम है, बबल है, सामान तो है, अभी भी यही चल रहा है। वही चलता है। एंड आई थिंक इट्स अ गुड थिंग इफ योर फैमिली इज सपोर्टिव ऑफ दैट, आपको वैसे ही करना चाहिए। आई थिंक आजकल क्या करते हैं ना लोग, व्हेन यू थिंक अबाउट बिजनेस यूल बी लाइक मेरा ना ऐसा ऑफिस होगा, स्टाफ होगा, मैं इतने बजे जाऊंगी, और ये ऐसे ही डजंट वर्क दैट वे। ये खाली आपको मूवीज में दिखता है कि 0 से 100 करोड़ मजाक में बन गया। 100 करोड़ कोई चीज़ होती है, यू कैन जो ओवरनाइट बिजनेसेस बिल्ड होते हैं ना, आई थिंक दे कैन नॉट सस्टेन। क्योंकि आपने अभी जो मेरे को जो 5 साल हो गया, इन 5 सालों में जो मैंने सीखा है कि क्या अगर आप गिरो तो उसको संभालना कैसे है। आई थिंक जो ओवरनाइट ग्रो करते हैं ना, वो उनको संभालना नहीं आता। वो ग्रो तो कर रहे हैं, बट देयर विल बी अ पॉइंट ऑफ टाइम इन देयर बिजनेस जब वो बैकलैश होगा। तो वो बैकलैश को संभालने के लिए आपको मेच्योरिटी चाहिए, आपको समझ चाहिए अपनी, आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, ये किया क्या, ये कैसे हो। अगर आप मुझसे आज पूछो,
आई नो एवरीथिंग अबाउट माई बिजनेस, क्या जीएसटी है, क्यों जीएसटी है, एक सामान के हैंडल का कितना खर्चा है, उसकी कोटिंग का कितना खर्चा है, ये सामान, ये सैलरी, एवरीथिंग. सो इट्स वी आर राइट नाउ ऑल्सो वी आर अ स्मॉल टीम. It's 3 permanent people, and we have student interns who design the product, who also help us in reels and stuff. सो जब मैंने अपना ऑफिस बिल्ड किया, छोटू सा, मैं अकेली थी. अब मेरे पास 500 रुपीज़ नहीं है कि मैं मेड को दूँ जो सफाई करे. सो मैं गंदे कपड़े पहन के जाती थी, मैं झाड़ू लगाती थी, मैं पोछा लगाती थी, टेबल साफ करती थी. उसके बाद उस टाइम पे रील्स बहुत ट्रेंडिंग शुरू हुई. एंड लाइक आई टोल्ड यू, मैं हमेशा से ड्राइंग पेंटिंग में थी. आई एम नॉट अ पब्लिक स्पीकिंग पर्सन एट ऑल. सो मैंने वहाँ पे रील्स बनाना स्टार्ट करा कि आई हैव टू फिर 1 टेक, 2 टेक, 3 टेक, 10 टेक, 15 टेक, वट एवर इट टेक्स आई विल डू इट. अच्छा नहीं भी लग रहा है, इट्स ओके, लेट मी पोस्ट इट. सो वहाँ से रील स्टार्ट कर, रील से रीच आने लगा. फिर देन आई रियलाइज कि यार इंस्टाग्राम को भी मुझे एज अ ऑडियंस फॉलोअरशिप बिल्ड करना है. राइट नाउ वी आर एट अराउंड 30,000 फॉलोअर्स. सो वो भी ग्रेजुअली बिल्ड करना है. उसमें आपको ना डिस्ट्रैक्शंस मिलते हैं कि 1,000 रुपये में 10 लाख फॉलोअर दे देंगे हम आपको. आपको समझ होनी चाहिए कि वो जो बॉट्स बेच रहे हैं उससे आपको क्या नुकसान हो रहा है. Correct. आपको दिख तो जाएगा 1 लाख फॉलोअर आ तो जाएंगे, बट देन वट एवर यू आर स्पेंडिंग ऑन योर एड्स, वो दैट विल नॉट रीच द राइट ऑडियंस. क्योंकि वो जो है वो आपके बॉट्स को दिखाएगा आपकी एड. बॉट्स आर नॉट रिस्पॉन्डिंग, अल्टीमेटली दैट एड विल डाई. सो ये सब समझ के लिए आपको हर चीज़ में घुसना ज़रूरी है. यू कैन नॉट से कि यार ये ना मार्केटिंग इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, आई कॉन्ट डू इट, आई विल हैव अ पर्सन टू डू इट. वो इंसान सही कर रहा है गलत कर रहा है तुम्हें पता कैसे होगा. Correct. तो उसके लिए सीखना पड़ेगा. अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, यू हैव टू नो एवरीथिंग, यू हैव टू लर्न एवरीथिंग, देयर इज नो शॉर्टकट टू इट. सो आप किसी को हायर करोगे, आपको जब तक नहीं पता होगा वो आपको पागल ही बनाएगा. इवन इफ यू हायर अ डिजिटल मार्केटिंग पर्सन, ROI नहीं, आपका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, जो रॉस हम बोलते हैं, 2 आ रहा है, 2x आ रहा है, 3x आ रहा है, आप कहोगे 2x 3x है, बट यू विल रियलाइज हो सकता है 2x 3x आपके लिए काम ही ना करे. आप प्रॉफिटेबल तब होगे जब आप 5x 6x पे हो गए. अब आपका मार्केटिंग वाला बंदा बोल रहा है कि इतना ही आता है, और इन्वेस्ट करो और पैसा लगाओ. आपको समझ तो हो कि वो बोल क्या रहा है. बिकॉज ना स्पेशली आई थिंक डिजिटल मार्केटिंग पीपल लोगों ना आपके जारगन्स मारेंगे, रॉस इतना है, CTR, ये आपको कुछ पता ही नहीं चल रहा, सब आपके सर के ऊपर से जा रहा है. सो उसके लिए आपको समझ होनी चाहिए. सो वो मैंने समझ गेन करी. एंड दैट्स हाउ धीरे 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 ग्रेजुअली चीज़ें बड़ी. इसके दौरान बीच बीच में बहुत छोटी 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 चीज़ें आई. आई थिंक जो हर बिजनेस में आती है, यू जस्ट नीड टू कीप गोइंग. Right, right. So I think- And even I want to ask, आपने जैसे बताया कोविड आया and you got a boost, है ना? But कोविड के टाइम पे हाउ आर यू मैनेजिंग द मैन्युफैक्चरिंग, बिकॉज आई थिंक वो तो आप बाहर से आउटसोर्स कर रहे Right. थे. सो हाउ वाज दैट थिंग हैपनिंग? आई थिंक मैन्युफैक्चरिंग उस टाइम पे डेफिनेटली रुक गई थी, बट उस टाइम पे उतनी सेल्स नहीं थी. जैसे आज क्या है, आज मुझे पता है कि मेरा 3 मंथ्स का इन्वेंट्री मुझे रखना है, बिकॉज आई नो दैट इतना सामान मेरे टाइम में बिक जाएगा. उस टाइम पे इतना कुछ था ही नहीं. उस टाइम पे सेल्स ही, आई थिंक आई वॉज हार्डली, आई डोंट नो, मे बी बिफोर कोविड आई वॉज गेटिंग 25,000 का सेल अ मंथ, दैट्स ऑल. सो उसमें मैं सीख ही रही थी, क्योंकि उस टाइम पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है 1 पॉइंट, लेकिन उस टाइम पे सेल्स हो रही थी, बट उस टाइम पे शिपिंग नहीं हो रही प्रोडक्ट की ना. तो प्रोडक्ट तो अल्टीमेटली 4 महीने बाद ही शिप होगा, क्योंकि कोई कोरियर कंपनी काम नहीं कर रही है, ऑर्डर्स जा नहीं रहे हैं. सो मैं ऑर्डर्स लेती गई. जितनी इन्वेंट्री मेरे पास में थी, मैंने थोड़ी एक्स्ट्रा भी ले ली, बिकॉज मुझे पता है कि जब तक खुलेगा मैं ये विंडो में बनवा लूँगी सामान. तो अच्छा, यू वर कीपिंग देयर शिपिंग लाइक टाइम पीरियड टू बी 4 months का. बिकॉज वो था, once it बिकॉज opens. जो अब जो सुनने में आ रहा था, बिकॉज आई वॉज शिपिंग थ्रू फेडेक्स आई थिंक दैट पॉइंट ऑफ टाइम. ओके. सो फेडेक्स से हमको वो फीडबैक्स, वो अलर्ट्स आ रहे थे कि अभी कुछ नहीं पता है, या उस टाइम पे आई थिंक एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल गुड्स वाला भी चीज़ चली थी. सो माय प्रोडक्ट्स आर नॉन एसेंशियल गुड्स. सो ये जुलाई से पहले खुलेगा ही नहीं, जितना न्यूज़ पढ़ रहे हो, जितना आप समझ रहे थे. सो वो चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग की मुझे टेंशन नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था कि बस इन्वेंट्री पड़ी है, पहले ये तो बिके, तब तो कुछ करूँगी मैं. And right, उस time पे people were understanding of this fact also, because they knew what situation is outside. So even I was in the COVID phase, I started in the COVID phase. तो मेरे पास भी ऐसा था कि people were giving that timeline, they were giving that time period to you, or they were shifting to, because मेरे पास तो digital का upper hand था, I could provide digital products. So they were shifting to digital products, or they were giving that time, जो अब शायद वो नहीं इतना कर पाते. आई थिंक उसमें भी क्या था, आई थिंक कोविड में लोगों को समझ थी, बट मेरे केस में आई थिंक लोगों को समझ नहीं थी, बिकॉज आई स्टिल रिमेंबर जब जुलाई आया एंड आई स्टार्टेड शिपिंग आवर प्रोडक्ट्स, देयर वर लॉट ऑफ COD ऑर्डर्स. ओके. बिकॉज उस टाइम पे मैं COD रखती थी, क्योंकि अब इतनी फेक वेबसाइट्स हैं, हाउ विल पीपल ट्रस्ट यू कि यार इस पर पैसा दे देंगे पता नहीं आए. तो मैंने COD रखा हुआ था. सो COD में, एंड माई प्रोडक्ट्स आर बल्की प्रोडक्ट्स, सो देयर आर 2 ways you ship the product. One is a volumetric weight, one is the actual weight. So मेरे प्रोडक्ट्स का एक्चुअल वेट इज 2 kg, बट बिकॉज ऑफ द पैकेजिंग एंड एवरीथिंग
द बॉक्स का वेट विल बी कैलकुलेटेड एज 4.8 kgs, 5 kg का स्लैब, मोर देन डबल. ओके, सो उसको शिप करने में अब ऑब्वियसली कस्टमर से मैं 100 रुपीज़ ले रही हूँ, बट आई एम नॉट पेइंग 100 रुपीज़, आई एम पेइंग अराउंड 250-300 रुपीज़ टू द कोरियर. करेक्ट. एंड हम बोल नहीं सकते ना उनको कितना शिपिंग अमाउंट, बिकॉज आई टेल यू व्हाट, सेम don't- जो हाँ they जो don't trust सेम रील्स चली थी ना कि इफ यू से 650 प्लस 99 शिपिंग, दे विल बी लाइक अरे नहीं नहीं महंगा है. इफ यू से 750 फ्री शिपिंग, दे विल बी लाइक हाँ जी. एंड ये माइंडसेट कस्टमर्स को अभी भी नहीं पता चलता. करेक्ट. इफ somebody is charging you extra shipping, मतलब आपको प्रोडक्ट सस्ता मिल रहा है. इफ इट इज फ्री शिपिंग, मतलब वो बहुत ज़्यादा मार्जिन रख के चल रहे हैं. Correct. दैट्स द बेसिक, पर लोगों को नहीं समझ में आता. सो और मैंने उस टाइम पे शिपिंग अलग ही रखी थी. सो आई थिंक व्हेन आई स्टार्टेड शिपिंग आउट ऑर्डर्स इन जुलाई, आई गॉट 15 प्रोडक्ट्स बैक एज रिटर्न्स, COD. एंड मैं COD ऐसे शिप नहीं करती थी. आई यूज टू कॉल अप द कस्टमर्स, कंफर्म द ऑर्डर्स, बिकॉज ऑब्वियसली अप्रैल के ऑर्डर्स है, मैं जुलाई में शिफ्ट कर रही हूँ, माइंडसेट चेंज हो गया, लेना है नहीं लेना है, पैसे हैं नहीं है क्या, कुछ एटलीस्ट कंफर्म करो. सो आई कॉल देम अप. और ये जो 15 ऑर्डर्स वापस आए, ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी. Right. कि एक ही महीने में 15 ऑर्डर, क्योंकि जा ही शायद आई थिंक 25-30 ऑर्डर रहे थे, 15 रिटर्न आ गए. सो ये व्हाट इज़ दिस. सो और आफ्टर कन्फर्मेशन वो रिटर्न आ गए. सो आई कॉल्ड अप कस्टमर्स, दे इज लाइक अब उस टाइम पे क्या है, अगर आपका शिपिंग शुरू भी हो गई है जुलाई में, सो नॉर्मली अगर यहाँ से आपने कोई ऑर्डर मुंबई शिफ्ट करा है, इट विल टेक अराउंड 6 days अप्रॉक्सीमेटली टू रीच. उस टाइम पे इट यूज टू टेक 15 days, क्योंकि ऑलरेडी पेंडिंग बहुत चल रहा था ना उनके पास में भी. सो कस्टमर का माइंडसेट क्या था, पता नहीं यार ये कब का निकला हुआ है, और अब ये प्रोडक्ट टूट ना गया हो, इतने टाइम से ट्रांजिट में है, टूट ना गया हो, सो विल नॉट एक्सेप्ट इट. सो दरवाजे पे मना कर रहे थे कि वापस ले जाओ. एंड दैट वॉज द टाइम कि ओके रिटर्न्स भी झेलने हैं. अच्छा ओके. सो दैट्स व्हाई आई सेड, बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट योर ओन बिजनेस ना, आपको बाहर से कुछ नहीं पता होता यार. वंस यू एंटर यू रियलाइज कि अच्छा ये भी ज़रूरत है, ये पढ़ना है, ये समझना है, वो करना है, ये करना है. सो वहाँ से फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई वॉज गेटिंग रिटर्न्स. सो उसे कैसे टैकल करना है, फिर मैंने धीरे धीरे COD पे एक कैप लगाया कि 5,000 का प्रोडक्ट आप कैश ऑन डिलीवरी नहीं मंगा सकते, 1200 पर मंगा सकते हो. बिकॉज 1200 का प्रोडक्ट मीन स्मॉलर प्रोडक्ट, स्मॉलर बॉक्स, जिसका रिटर्न, बिकॉज आज भी आई थिंक कस्टमर्स को लगता है रिटर्न तो ऐसे ही हो जाता है, क्योंकि अमेजॉन और मिंत्रा एंड नायका एंड दीज बिगर ब्रांड्स, इन्होंने ना इतना ज़्यादा कस्टमर को स्पॉइल किया हुआ है. Exactly. आई वुड से स्पेशली अमेजॉन, बिकॉज Exactly. अगर अमेजॉन में आपका ये प्रोडक्ट जाना है, इसका इतना बड़ा डब्बा आएगा. एंड बिकॉज आई एम फ्रॉम दिस फील्ड, आई नो कि भाई इतने बड़े डब्बे का वॉल्यूमेट्रिक वेट बहुत ज़्यादा होगा, इसका तो बहुत कम है. वाई अमेजॉन इज डूइंग, आई डोंट नो, बट वो माइंडसेट तो कस्टमर्स को समझ में नहीं आ रहा भी ना. उन्होंने बहुत ज्यादा कर रखा है. आई मीन इतना. नो क्वेश्चन आस्क्ड पॉलिसी. Exactly. पीपल यूज इट एंड सेंड इट बैक. Exactly. And send what back? You see so many scams happening. People order a mug, they give back a t-shirt. उसका कोई वो नहीं है, and the seller is the one who's facing एग्जैक्टली. all of it. अमेजॉन में प्रॉब्लम ये है कि अमेजॉन में एज अ सेलर यू विल बी द वन हु विल बियर एवरीथिंग, Right. which is kind of I feel it's unfair to the seller, because ultimately तुम्हारा बिजनेस हमसे भी चल रहा है, कस्टमर से भी चल रहा है. Correct. सो कस्टमर का माइंडसेट वहाँ पे, उनको पता ही नहीं होता कि अगर मैं इस कप को भेजने में 250 भर रही हूँ, इसको वापस मंगाने में भी 250 भर रही हूँ, Right. ये फ्री में नहीं आ रहा है वापस. उतना, क्योंकि आई थिंक वो नॉलेज नहीं है कस्टमर्स को, वो पता ही नहीं है कि क्या है, तो इसलिए दे डोंट वैल्यू इट. इज लाइक ओ मैं ना हूँ नहीं, प्लीज़ कैंसिल द ऑर्डर, वापस ले जाओ. अब उसके पीछे क्या हो रहा है, क्या उनको कोई मतलब ही नहीं है उस चीज़ से. या मैंने कई बार सुना है कि अगर आप मिंत्रा से, लेट्स से इफ़ यू आर ऑर्डरिंग ड्रेस, आई हैव लिटरली, ये मैंने अपने किसी कलीग से सुना था, दैट शी ऑर्डर्स 3 sizes टुगेदर, एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, बिकॉज उसको पता नहीं कौन सा फिट होगा, तो जो फिट होगा वो पहन लूँगी, बाकी तो रिटर्न कर दूँगी. मतलब शी इज़ दैट कैजुअल अबाउट इट कि ठीक है वापस कर देंगे. भाई ये ऐसे नहीं है ना वापस हो जाएगा. आई मीन वाई आर दीज कंपनीज इन लॉस. हाँ ठीक है, उनका मॉडल इज दैट कि वो लॉस मेकिंग इतना कर रहे हैं कि वो प्रॉफिटेबल होंगे इवेंचुअली, बिकॉज भाई वो लगा पाए उतने करोड़ों रुपए, इट्स गुड फॉर देम. बट फॉर अ स्मॉलर बिजनेस ना ये चीज़ में आप फंस जाते हो, बिकॉज कस्टमर को वो पता ही नहीं चल रहा, क्योंकि वो तो 3 size मंगा रहे हैं, 2 वापस कर रहे हैं. And the worst part about not having cash on delivery, मतलब अगर आप डिसाइड करो तो फिर आप पे क्वेश्चन है, आप स्कैम हो, Fake company हो मतलब सकते हो हम आप. कैसे ट्रस्ट करें आपको. अरे ट्रस्ट करने के लिए आई एम सो नाउ लाइक अनॉयड बाय दिस क्वेश्चन ऑनेस्टली. जब मेरे को कोई पूछता है ना आप चैट genuine हो में, कि नहीं हो? हाँ, आई ऑनेस्टली आइदर लीव इट ऑन सीन और आई एम लाइक डोंट ट्रस्ट. नहीं, आई तो आई विल बी ऑनेस्ट, आई तो आंसर इट. नहीं यार, मेरे को ऐसा लगता है these questions tell me one thing. If for instance I am a scammer, why will I say that I am a scammer? They're like, आप scam तो नहीं करोगे ना. एग्जैक्टली, आई तो विल मैं नॉट क्या एक्सेप्ट बोलूँ कि इट. हाँ मैं scam करूँगी भाई. Who will say that?
I know. लाइक ये क्वेश्चन मतलब ये question doesn't make sense. हाँ I और फिर वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आंसर नो ही मिले ठीक है तो तुम और रिव्यूज नो देख पे लो नहीं मिले, नो पे दे विल नीड अ जस्टिफिकेशन ऑल्सो. हाँ. ऐसे नहीं मानेंगे कि नो. सो पूरा मैं एक उनको रील्स paragraph. भेजती हूँ, मैं उनको फिर मैंने कोलैबोरेशंस भी स्टार्ट करी इन्फ्लुएंसर्स के साथ में कि यार इनको लगे कि मैं जेन्युइन हूँ. बिकॉज इफ यू नो बिगर पर्सन टैग्स यू दे विल बिलीव कि हाँ ये है. सो ये सब चीज़ें आई थिंक इट्स योर ओन पोर्टफोलियो जो आपको एज अ बिजनेस बिल्ड करना पड़ेगा इन आज का टाइम. यार बट आई अगर हैव आप online- बिल्ट इट आई स्टिल फेस इट लाइक मेरे तो तो मैं नहीं पेज face करती पे खैर. नहीं यार आई स्टिल फेस इट मेरे I पेज don't पे know यू विल why. सी सो मच ऑफ मी यू विल सी सो मच ऑफ रिएक्शन वीडियोस यू विल सी सो मच ऑफ रिव्यूज एंड स्टिल आई हैव अ क्वेश्चन हाउ डू आई ट्रस्ट यू अरे भाई शुड आई ये कम trust फोन issues से हैं बहुत तुम्हारे ज़्यादा. पास हाँ इनके लिए मैं हूँ हाय. ये तो है. So वो I think this is part of every business. Yeah, you have to go Correct. through it. No, you cannot build a business without this. And you will meet weird people as customers. मतलब कई customers are so nice. मतलब you'll be like हाँ सारे customers ऐसे क्यों नहीं होते. Correct. But कुछ तो ऐसे मिलेंगे आपको कि I was telling you before the interview ना. So there was this order जिसमें मैंने 2 ceramic के बाउल्स उनको शिप करे एंड 3 ceramic के बाउल शिप करे. 3 में से एक टूट गया एंड शी कॉल्ड मी शी लाइक कि टूट गया ये है वो. आई सेड ओके मैम आई एम रियली सॉरी फॉर दिस. जो एक टूट गया बिकॉज सेरेमिक टूट गया तो वो मेरे भी किसी काम का नहीं है, आपके भी काम का नहीं है. मैंने कहा उसको डिस्कार्ड कर दो एंड आई सेंड यू अ फ्रेश पीस जो टूट गया. शी इज़ लाइक नो सेंड मी ऑल 3, टेक दिस अवे. आई वाज लाइक मैम 2 सेरेमिक जो हैं वो ठीक हैं. इफ़ आई शिप देम बैक टू माई वेयर हाउस वो टूट जाएंगे फॉर श्योर बिकॉज यू कैन नॉट पैक इट द वे आई डिड. एंड इवन इफ यू डू देयर हाई चांसेस बिकॉज रिटर्न शिपमेंट्स ना इंडिया में बहुत फेक की तरीके से हैंडल करते हैं बिकॉज रिटर्न है फेंको. अरे नॉर्मल शिपमेंट्स अमेजोन को आप देखो ना, आपने ये कप मंगाया है ये थर्मोकॉल पैक में आएगा, वापस करोगे थैली में ले जाएगा वो. ही विल डू इट. आई हैव सीन इट एज अ कस्टमर ऑल्सो. ही विल डू इट कि मैम अपना रिटर्न कर देना, क्या टेंशन है छोड़ो. सो आई वाज लाइक मैम मैं नहीं कर सकती बट आई सेंड यू नहीं. मतलब आई एज अ पर्सन एज अ ब्रांड कंपनी तो मुझे सब सही साउंड कर रहा था कि एक टूट गया मैं नया भेज रही हूँ. शी इज लाइक देन शुड आई ब्रेक इट एंड सेंड इट टू यू. आई वाज लाइक हाँ. आई वेंट नम ऑन द फोन. लाइक इसको कैसे आंसर करते हैं यार, ये कैसा एटीट्यूड है कि मतलब आई एम बीइंग जेन्युइन टू यू, आई एम जेन्युइनली रिप्लेसिंग व्हाट आई यू नो व्हाट मिस्टेक आई मेड. उसके ऊपर से आप ये क्या कर रहे हो. फर्स्ट टाइम हो रहा है ना, मुझे पता, मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कस्टमर क्योंकि मैं एज अ पर्सन कभी किसी को नहीं बोल सकती है. सो लाइक 2-4 सेकंड के लिए आई वाज लाइक ओके ओके. आई सेड मैम आई एम सॉरी द कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड लाइक यू कैन नॉट डू इट. सो फ़ोन मैंने रखा एंड आई वेंट टू माई मॉम. मैंने कहा मम्मी ऐसे ऐसे हुआ है और मम्मी कह रही यार बड़े अजीब लोग हैं और मैं ऐसे बैठी हूँ कि ये भी हैंडल करना है प्राची. सो थिंग्स आर कमिंग एक 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 करके बिकॉज प्रोडक्ट बना लिया, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो गया, प्रोडक्ट वेबसाइट पे डालना है तो फोटोग्राफी भी मैंने खुद ही करी क्योंकि फोटोग्राफर को देने के लिए पैसे नहीं है. सेम सो फोटो शूट सो इट डजंट एंड टू जस्ट द डिजाइनिंग पार्ट. यू नीड यू वो बोलते हैं ना कि यू हैव टू बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन. यू हैव टू बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ वन हो गए शायद हो सकते हो बट यू हैव टू बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स. आपको हर चीज़ का एक्सपर्टीज नहीं हो बट आपको पता होना चाहिए व्हाट इज हैपनिंग. करेक्ट. बट उसका क्या माइंडसेट है कि मुझे तीनों दोबारा चाहिए. आई मीन don't आएगी तो सेम चीज. आई हैव नो आइडिया. आई थिंक कई लोगों को पता नहीं. दैट ऑर्डर देन सो आई सेंट वन. मैंने कहा मैम आई कांट सेंड इट, आई कांट सेंड 2 न्यू प्रोडक्ट बिकॉज इट डजंट मेक सेंस टू मी. एंड मैंने मेंशन किया हुआ है वेबसाइट पे, जो आप जो वेबसाइट बिल्ड करते हो ना, यू हैव टू मेंशन शिपिंग एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स. तो वहाँ मैंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि जो टूटा हुआ प्रोडक्ट होगा आई विल रिटर्न दैट, दैट्स ऑल. सो आई एम सेंडिंग यू वन प्रोडक्ट. इफ यू वांट टू कीप इट प्लीज कीप इट, इफ यू वांट टू ब्रेक इट. आई यू नो आई कांट डू. मैं कुछ कर ही नहीं सकती यार उसमें. सो बहुत छोटी छोटी चीज़ें आपको बिजनेस में ध्यान रखनी पड़ती है. मतलब कस्टमर ये वो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं बट बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो इसमें होती है ना. आपको पेमेंट गेटवे क्या होता है, कितना % वो लेंगे, क्या होगा, वेबसाइट अगर डाउन हो रही है क्या होना है. सो ये सब चीज़ें आप पहले, अगर आपको 10 साल का भी आई वुड से जॉब का एक्सपीरियंस है, यू विल नॉट नो दीज थिंग्स. ये होगा तभी समझ में आएगा. सो ये सब बैटल आपका चल रहा होता है. इस पूरे दौरान आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो, रो रहे हो बिकॉज एक तो आपको खुद कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि ये मैं जो कर रही हूँ होगा कि नहीं होगा. बिजनेस इज वेरी अनसर्टेन. ऊपर से आपके आसपास के रिश्तेदार और आएंगे, ये क्या कर लिया बेटा, अच्छी खासी जॉब थी, क्यों कर रहे हो, बढ़िया तो चल रहा था, क्या दिक्कत है. ओके अभी मैं खुद ही सेल्फ डाउट में हूँ एंड देन ऊपर से यू आर ऑल्सो कमिंग मी, मेरे को और उस सेल्फ डाउट को मैं 4 मिर्च लगाने के लिए. सो वो आई थिंक nobody encourages you when you do it. राइट. Your family will always be concerned about it. They will not discourage you but they will be concerned about it. People around you, your रिश्तेदार will discourage you. There's nobody to encourage you. राइट. And you yourself is not in that kind of mental state कि आप खुद को बोलो नहीं प्राची you can do it, ये अंदर की आवाज़ वैसे ही confused चल रही होती हो.
सो वो मैं आपका ना एक पर्सनल बैटल चल रहा था आपके कॉन्फिडेंस का, बिकॉज आई बिलीव दैट मनी गिव्स यू कॉन्फिडेंस. अगर आप आज आपके बैग में आप 20,000 रुपये रख के घूम रहे हो, आपको लगेगा दुनिया जीती हुई है मैंने. आपको जो खरीदना आप खरीद सकते हो, जो कपड़े खरीदने हैं, जो एंड आई लाइक शॉपिंग लाइक अ टिपिकल गर्ल बिहेवियर. आई लव शॉपिंग. मेरा मूड खराब होगा, आई शॉप. ओके, बट अगर मुझे पता है मेरे पास पैसे नहीं है, मैं अपना हाथ इतना रोक लूँगी दैट आई विल नॉट बाय 10 रुपये का फ्रूटी ऑल्सो. राइट. सो दैट काइंड ऑफ होल्ड आई हैव इन माई लाइफ. बट आपको अंदर से वो चीज़ परेशान करती है. लाइक व्हेन यू सी आपके आसपास के लोग हैं, यू नो दे आर, एंड मैं हमेशा अपने इंटरव्यूज़ में ना ये बात बोलती हूँ कि जब आप 25 यू स्टार्ट अर्निंग, एंड 30 तक की जो एज होती है ना, ये एज ऐसी होती है कि आपने नया नया कमाना शुरू किया होता है, नया नया आप खर्चा करते हो, नया नया आप ट्रिप्स पे जा रहे हो. सो आपको ना थोड़ा सा कहीं ना कहीं, आई नॉट एग्जैक्टली शो ऑफ, बट यू स्टार्ट फीलिंग दैट यू शुड बाय ब्रांड्स. मैंने ज़ारा का बैग उठाया हुआ है, नॉट वेरी यू नो हाई एंड माइकल कॉर्स एंड स्टफ, बट मैंने ज़ारा का बैग उठाया हुआ है. यू नो आई एम वेयरिंग H&M के कपड़े, या यू नो टू सम एक्सटेंट ब्रांड्स लाइक माइकल कॉर्स ऑल्सो, कि मैं ना 10,000 का बैग से उठाऊंगी, अच्छा लगेगा, पार्टी में जाऊंगी. बिकॉज यू नो यू आर अर्निंग एंड यू लाइक स्पेंडिंग ऑन योर सेल्फ. एंड जब आपने अपना बिजनेस स्टार्ट करा है, आपके पास में तो 500 रुपये का टी शर्ट खरीदने का पैसा नहीं है अभी. करेक्ट. तो कहाँ तुम माइकल कॉर्स और ज़ारा पे चले गए. सो वहाँ पे आई यूज़ टू फील बैड अबाउट माई सेल्फ कि यार मेरे फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं लाइफ में, मैं ये क्या कर रही हूँ. मतलब मैं ये क्या कर रही हूँ. मेरे पास अपने कपड़े खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, मैं मम्मी से पैसे नहीं मांग सकती हूँ. मुझे बिल्कुल नहीं पसंद इस उम्र. मतलब आई फील कि आफ्टर अ सर्टेन एज आई शुड बी एबल टू गिव इट टू माई मदर, कि मम्मी ये लो आपका जो मन है आप खर्चो. यू नो उनका जितना उन्होंने करना था उन्होंने मेरे कॉलेज तक में कर लिया. उसके बाद शी इज़ नॉट सपोज टू डू इट, शी इज़ सपोज टू लिव हर लाइफ, एंड आई वॉन्ट हर टू लिव हर लाइफ. सो वो मैं कर नहीं पा रही थी. सो वहाँ पे मैंने अपने आपको समझाया कि यार 20s इज़ नॉट योर एज टू बाय ब्रांड्स एंड शो ऑफ. दिस फॉर लाइफ पड़ी है इसके लिए. 35-40 यही करना है, कर लेंगे. बट आई थिंक टिल 35-40 घुस जाओ अपने बिजनेस में एंड गिव योर सेल्फ टाइम कि ये मैं बनाऊंगी. आई विल नॉट गो इधर उधर, बिल्कुल जैसे घोड़ा होता है ना, बिल्कुल वो यहाँ पट्टी लगाओ और चलते जाओ. बिकॉज दैट इज़ वॉट विल गिव यू सक्सेस. अदरवाइज यू कैन डू इट. Nobody can do it. Right. The dedication that is needed in a business is way more than in a job. One thing that I realized in the difference in job and your own business is one. For example, जैसे मैं जॉब करती थी and my manager used to come कि यार ये प्रोडक्ट नहीं आए हैं, सैम्पल्स नहीं आए हैं, कॉल अप द वेंडर, टेक द अपडेट. एंड मैं थोड़ा सोने के मूड में हूँ, मुझे ना मज़ा नहीं आ रहा आज, मैं थकी हुई हूँ, मैं सोई नहीं हूँ. So यार काम बोल दिया इसने. What I used, this is a real situation, I'm not making it up. मैं क्या करती थी, मैंने फ़ोन उठाया, मिलाया, काट दिया, ताकि मेरे कॉल लॉग में आ गया वो. He's not picking up. हाँ, तो यार वो ना मैंने उसको मिलाया था, आउट ऑफ कवरेज जा रहा है उसका फ़ोन ना, मिल ही नहीं रहा उसका फ़ोन. सो अब मेरा सारा जो टेंशन है, प्रोडक्शन, टाइमलाइन, सेल, वो सब कहाँ हो गया, मैनेजर पे शिफ्ट. आई एम चिल्ड आउट, मेरे को सैलरी मिलेगी बढ़िया. जब आप बिजनेस कर रहे हो, ऑल दीज एरोज, दीज क्वेश्चन, दीज टेंशन विल कम डायरेक्टली ऑन यू. ये फर्क होता है आई थिंक एक जॉब में और एक बिजनेस में, कि द एरोज विल कम टू यू अब वो डायरेक्टली. सही में कॉल अगर नहीं उठाएगा ना तो आप मैं 12 बजे भी परेशान करोगे. मैं अब मुझे होता था जो कि अगर शायद जी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं मेरे जो फर्स्ट वेंडर थे 12 बजे, मैं स्कूटी उठाऊंगी, नेक्स्ट डे सुबह 9 बजे मैं उनके पास पहुंची हूँ कि भाई क्या हो गया, क्या कर रहे हो, फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो. जॉब में बढ़िया क्या टेंशन है, सारी टेंशन उधर. सो ये आई थिंक एक मेजर डिफरेंस होता है. बिकॉज आई सी पीपल दे स्ट्रगल इन जॉब ऑल्सो, बिकॉज रात को 12-12 बजे तक लगे हुए हैं, थिंग्स आर हैपनिंग. बट जो मेंटल स्ट्रेस होता है ना, वो बिजनेस में फॉर श्योर एनी डे ज़्यादा होता है. करेक्ट. बिकॉज यू नीड टू डू एवरीथिंग, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, एंड उसका जो आउटकम है वो भी आपको डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है. एक बारी को अगर कंपनी प्रॉफिट नहीं बना रही है, यू विल स्टिल गेट योर सैलरी. कुछ तो आएगा, बोनस नहीं आएगा, कुछ तो मिलेगा. यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आपके खर्चे वहीं के वहीं खड़े हैं. यू नो, सो आई थिंक ये एक डिफरेंस बहुत ज़्यादा है बिजनेस है. करेक्ट. बट जितना वो डाउन साइड है उतना ही हम अप साइड भी देखते हैं. इट्स ऑल प्रोज एंड कॉन्स हैव. करेक्ट. इसीलिए वो वर्थ इट भी हो जाता है ना, जो हम. बट वो एक सर्टेन जो उसकी जो आई थिंक जो बिजनेस का जो ग्लैमर आता है ना, योर ओन ऑफिस, कार, एंड मैं पहुंच गई 10 लोगों की टीम एंड स्टफ, वो एक पॉइंट के बाद आता है. करेक्ट. वो पॉइंट को रीच करने में, मैंने कहीं पे पढ़ा था जब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, कि आई थिंक 85% ऑफ स्टार्टअप्स फेल इन इनिशियल 5 years. बंद हो जाते हैं, शट डाउन हो जाते हैं. सो वो जब तक मैंने 5 साल क्रॉस नहीं करा था ना, मुझे वो डर था हमेशा से कि यार 5 साल. सो अब हम लोग 5.5 साल हो गए हैं मुझे, सब मेरे अंदर वो डर नहीं है. चलो 5 साल हो गए हैं. बट वो जो ग्लैमर साइड है ना, लोग हमेशा वो ग्लैमर साइड को देखते हैं बिजनेस के, कि यार बढ़िया है, कोई छुट्टी मांगने की ज़रूरत नहीं है, जब जाना है वहाँ चली जाती है, जब अपना ऑफिस मिस करना मिस कर लेती है, जब जो मीटिंग करनी. ऐसे नहीं होता.
जब आप अपना बिजनेस करते हो, आप खुद को छुट्टी देना पता है कितना मुश्किल काम है, राइट कि आपको पता है कि आपके पास में ये 10 ऑर्डर पड़ रहे हैं, कस्टमर चिल्ला रहे हैं, वेंडर खराब है, प्रोडक्शन प्रॉब्लम हो गया, और आपके घर वाले क्या कह रहे हैं, यार मनाली चलते हैं छुट्टी पे। एग्जैक्टली वो तो क्या बोलेंगे, सिक लीव ले सकते हैं, ये वो यू कैन अप्लाई फॉर द लीव। यहाँ पे खुद को छुट्टी देना इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। सो वो ग्लैमर साइड कम्स आफ्टर, आई वुड से, आई थिंक मे बी, आई डोंट नो, मेरी तो ग्लैमर साइड अभी नहीं आई है। मेरी भी नहीं आई है आई थिंक वो शायद 10 ईयर्स के बाद ही आती है। 10-12 साल जब आप दे देते हो, एक स्टेबिलिटी आ जाती है, तब वो ग्लैमर आना शुरू होता है। आई थिंक सो, आई डोंट नो इट येट, बट ये But this is so relatable. Like, ask my family. They'll be the same. अभी पीछे we had to go. भाई बहुत टाइम हो गया, नानी के घर नहीं गए. My nani's house is in Amritsar. Okay. So it's like quite far. I cannot go it every now and then. So they're like बहुत टाइम हो गया, चलो चलो चलो. And I'm like, आपको पता है कस्टमर पे कैसे चिल्ला रहे हैं इस हाँ. समय? The vendor, the manufacturing is not giving me the print. ठीक Exactly. है? यहाँ पे ये मेरे पीछे पड़े हैं. मैं उनको क्या बोलूँ कि वो आगे से प्रिंट नहीं दे रहा है? और मैं कसम अमृतसर से- जा रही हूँ, हाँ सब छोड़ के। मैं अमृतसर जा रही हूँ जी वो चिल्ला रहे हैं मेरे पे, मैं अमृतसर जा रही हूँ और मैं कैसे उधर एंजॉय करूंगी आप बताओ। आप क्या, बिकॉज यू आर वर्किंग मेंटली, दैट्स व्हाट आई Right. डू। मतलब यू विल नॉट बिलीव, सो आई जस्ट गॉट मैरिड 2 months बैक, ओके, एंड आई वेंट ऑन माई हनीमून टू दुबई, ठीक है। सो वहाँ पे, एंड वी वर रिसेंटली ऑन बोर्डिंग ऑन मिंत्रा, लाइक उस दौरान उसी वीक में मैं ऑन बोर्डिंग मेरी चल रही है, एंड मुझे कॉन्स्टेंट ईमेल आ रहे हैं मिंत्रा से दैट अगर आपने ऑन बोर्डिंग नहीं करी 48 आवर्स में, 27 के बाद में हम सेल लगा देंगे, ऑन बोर्डिंग होल्ड हो जाएगी, ये वो फलाना 100 थिंग्स। So I was working. I still remember, we were sitting outside the mall of M&S. I told my husband, क्या तुम ना जरा देख के आओ कहाँ खाना है, जरा मैं 2 मिनट दे दो मुझे। एंड मैं अपने टैब में लगी हुई हूँ, मैं ईमेल को रिप्लाई कर रही हूँ, मैं उनके पोर्टल पे उनके एग्रीमेंट को, जो भी उनके प्रोसेस था, लाइक इट्स अ ह्यूज प्रोसेस जो उनका फॉलो करना होता है, एंड आई कुड नॉट मिस द अपॉर्चुनिटी बिकॉज आई वॉज ट्राइंग टू गेट। मिंत्रा इज नॉट लाइक अमेजोन कि आप गए अपना अकाउंट बनाए, यू कैन सेल योर स्टफ। मिंत्रा में आपका शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस होता है। आई हैव बीन रिजेक्टेड बाय मिंत्रा वंस बिफोर, so to be onboarded by Myntra या selected by Myntra was a big thing for me, because I need that boost in my sales now. बट वो फिर आप RTOs कैसे मैनेज करोगे? वो RTOs, I think we are recently onboarded on Myntra. So RTOs, see, I think कहीं भी अगर आप कुछ काम शुरू करो, 3 months you have to give to understand कि कितना RTO आ रहा है, क्या हो रहा है। As per me, जो मेरी अपनी वेबसाइट है, so the RTO, the kind of RTO I get is 4%, Okay. 3 to 4%. So that is bearable because I have that cost included in my cost already. Right. But that is also, I think you have an upper hand because you have a stock to maintain, है ना? हाँ. मेरे केस में when everything is personalized, I cannot have an But then RTO. you will take the money in advance, right? हाँ मैं COD I cannot keep There's COD. no point. मैं अगर किसी को पर्सनलाइज करके कोई चीज भेज रही हूँ, मेरे It's a पास waste रिटर्न for you. आएगा, व्हाट एम आई सपोज्ड टू डू? Right, obviously. बट पीपल डोंट अंडरस्टैंड दिस ना। Yeah, I think it all it boils down to the customers कि उनको। Yeah. So मैं क्या करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पेज जो है अभी इंस्टाग्राम का 30,000 पूरा ऑर्गेनिकली बिल्ड किया हुआ, स्टेप बाय स्टेप सीखा करा, वहाँ से ना आई थ्रू माई रील्स, थ्रू माई स्टोरीज, आई ट्राई टू एजुकेट माई कस्टमर्स। इट माइट गो नेगेटिव समटाइम्स, हाउएवर आई ट्राई कि मैं ऐसे नेगेटिव वे में उस चीज़ को ना परस्यू करूँ कि तुम लोग ऐसे करते हो वैसे करते हो। इन जनरल कि दिस इज़ व्हाट हैपेंस, बिकॉज राइट नाउ आई चार्ज आई थिंक 125 रुपीज़, पहले मैं आई थिंक 2 months पहले 125 रुपीज़ एज शिपिंग चार्ज लेती थी। वहाँ से क्वेश्चन क्या आता है, शिपिंग इज सो हाई। आई वाज लाइक 125, इसको भेजने में मुझे 325 रुपीज़ लग रहे हैं भाई, बाकी वो तो देखो। अब कस्टमर को आई अंडरस्टैंड कि लोगों को पता नहीं है, दैट इज़ वाई दे लाइक ओ माय गॉड। सो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज, मैं छोटा छोटा कभी बैठी हूँ तो मैं स्टोरी डाल दूँ लाइक इफ यू हैव ऑर्डर्ड लेट्स से 5 प्रोडक्ट्स, आप क्या भर रहे हो 125 रुपीज़, व्हाट आई एम पेइंग 750 रुपीज़। सो वो डिफरेंस है, पीपल नीड टू अंडरस्टैंड दैट, एंड आई थिंक आई एज अ बिजनेस कैन एजुकेट देम अबाउट इट, क्योंकि ऐसे तो उनको आगे कोई बताएगा नहीं ना, मिंत्रा एंड अमेजोन एंड दे आर नॉट गोइंग टू टेल देम। सो वो आई ट्राई कि आई थिंक उनको थोड़ा सा समझ में आए। तो कहीं कहीं कस्टमर्स को जब मैं उनका रिप्लाई देखती हूँ DM पे कि मेरी स्टोरी पे कि ओ माय गॉड यार हाउ कैन पीपल डू दिस टू यू, सो आई थिंक दैट देयर आर पीपल जिनको समझ में आ रही है बात, धीरे 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 ग्रेजुअली स्लोली, बट दे आर अंडरस्टैंडिंग। Yeah, I believe 90% people understand, but those 10% is who come to your nerves and to your mind कि भाई why can you not understand? आई नो, मतलब समटाइम्स यू फील लाइक यार ये बहुत बेसिक चीज समझा रही हूँ मैं, Right. समझ क्यों नहीं आ रही है। Please don't get me started. मैं rant करना मतलब- चालू कर दूंगी। आई नो, मतलब मुझे लगता है कभी अगर 2 बिजनेस साथ में बैठ जाए ना, यू विल हैव सो मच इन कॉमन Correct. to relate to and to talk about कि like you can spend nights on it. Right. So this happens like अगर एक basket है, for example एक basket था, so my company says that we will only provide you an exchange or a return if the product delivered to you is broken या गलत product deliver हो गया। Correct.
and you need to inform us within 24 hours of the delivery, because I know people have this, आपके घर में गेस्ट आना है, चलो जी टिश्यू होल्डर मंगाए, यूज़ का, रिटर्न. तो मुझे एज अ कंपनी मुझे वो भी तो बचाना है ना, मतलब आई हैव टू बी समवेयर इन बिटवीन, कि नॉट बिल्कुल ही कस्टमर फ्रेंडली रिटर्न्स, नॉट बिल्कुल ही कंपनी फ्रेंडली की जॉब हम करते ही नहीं. सो उस केस में अदरवाइज वी डोंट ऑफर, वी डोंट एंटरटेन. So this recently, I think happened, I think last week only. So there was this customer who came to me on email and WhatsApp and said कि ऐसे से आया है एक बास्केट, उसमें ना थोड़ी सी ग्लू दिख रही है, एक आप करने वुडन में हल्की सी ग्लू दिख रही है, and he had sent me a picture. So I was like, because I understand there are some things which are limitations of the production, I have to go through it, इसको मैं रोक ही नहीं सकती, you know, कुछ चीज़ें आपको पास करनी पड़ती हैं. So that was, as per the company, it was a pass, it was a good product. So but I can't lose a customer also, and I can't afford to get it back also, because उसको वापस बुलाने में 400 रुपये लगेंगे मुझे. 400 में दे चुकी हूँ, मेरा प्रॉफिट कहाँ है, ख़त्म. So I told him कि sir, as per the company policy, I can't offer it, I can't offer a return or an exchange. But since you are my customer, what I can offer you is कि आप मुझे ये प्रोडक्ट अपनी कॉस्ट पे वापस भेज दो. I will send a fresh product to you on my cost. I am still in loss, okay, but I will do it. अब वो कस्टमर गया होगा रैंडम DTDC या किसी कोरियर पे, उसको वो बास्केट को कोरियर करने में लगा 850 रुपीज़, एंड देन ही अंडरस्टूड व्हाट वी पे. आई वाज लाइक, अभी समझ आया तुम्हें? क्या लग रहा है कि हर चीज़ का शिपिंग बस 80-100 रुपये ही होता है? बिकॉज आप लोग क्या करते हो, जैसे हमारे मदर्स हैं या जो भी इस जनरेशन में है, दे ऑर्डर फेसबुक से. आजकल ये ना सूट कुर्ती कपड़े मंगाने का बहुत फैशन है, एंड व्हाट दे चार्ज इज 80-100 रुपीज़, बिकॉज उसमें उतना ही लगता है. सो उनका माइंडसेट है कि यार कोरियर ही तो है, कितना लग जाएगा. सो ही अंडरस्टूड कि अच्छा इतना लगता है. एंड देन ही सेंट मी, इज लाइक, कैन यू रिम्बर्स some part of it? I was like, I'm sorry sir, I can't do it, because I'm already paying another shipping to ship a fresh product to you, despite being company policy not being there. ये तो चलो, it had a glue. मेरे साथ तो ये बहुत ज़्यादा होता है, because I recently started phone covers, है ना. Okay. That was accidental. I didn't mean to, वो गलती से हो गया बस. रील चल गई तो I have to now. तो उसमें क्या था, I didn't realize कि it is going to be a task. Because phone covers में it's not just a phone cover, there are several models. And आप, अब मेरे पास हर मॉडल तो नहीं है ना चेक करने के लिए. अब वो किसी मॉडल का अगर वो फिट नहीं हो रहा कवर, that is my cost. I have to get it done again, and that is on my cost. और वो आप कितना ही फ़ोन कवर में आप कितना मार्जिन रख सकते हो? How expensive will you buy a phone cover? Obviously. And when I'm getting it customized, मेरी तो कॉस्टिंग भी बढ़ रही है, बिकॉज अगर कोई सेम चीज़ आप प्रिंट करवा रहे हो, फॉर इंस्टेंस कोई बल्क में जा रहा है, चलो उसकी कॉस्टिंग जो है वो मैन्युफैक्चर कम कर देगा. जब मैं एक एक डिज़ाइन खुद बना के दे रही हूँ उसको कि इस मॉडल पे ये, इस मॉडल पे ये, तो वो बोलेगा मैम ऑब्वियसली नॉट गिविंग बल्क ऑर्डर, तो वो तो चार्ज करेगा. और इतना इस पे जाता है, बिकॉज मैं तो रिटर्न मंगवाती नहीं. आई एम लाइक, उसका एक तो उनका भी लगेगा, मुझे वो देना ही पड़ेगा. आई हैव टू रीइंबर्स अनलेस इट इज़ समथिंग विच आई कैन यूज़ और आई कैन हैव इट. आई डोंट गेट इट बैक, बिकॉज आई थिंक वो मेरे लिए एक तो अमाउंट वेस्ट है, ठीक है, फिर उसके बाद मुझे अभी दोबारा भी भेजना है, तो वो ऐड ऑन है. तो वो अपनी पॉकेट से ही गया ना, उसमें प्रॉफिट गया पहले में, सेकंड में जो जाएगा वो अपनी पॉकेट से जाएगा, पॉकेट से ही जाएगा. तो कस्टमर्स नहीं सोचते. मतलब मैंने एक चीज़ देखी है, सो अगर एक प्रोडक्ट भेजा है, उसका ये हैंडल हल्का सा लाइक हल्का सा, मीन 2 डिग्री टेढ़ा है, आप उसको यूं करोगे वो ठीक हो जाएगा? नहीं, आई वांट अ रिटर्न. अरे ऑन अ ह्यूमन लेवल तो सोचो कि तुम क्या कर रहे हो. इट इज समबडीज हार्ड अर्न्ड मनी यार. व्हाट आर यू डूइंग इट? मतलब व्हाई आर यू इवन डूइंग इट? आई टेल यू व्हाट, दिस हैज हैपेंड जस्ट लाइक यू सेड बिकॉज़ ऑफ Amazon Myntra. It is they have spoiled customers like anything. So people have stopped. I don't think as a customer I am like this to Amazon Myntra, because I understand what goes behind it. Yeah, I think before starting the business also I was not like this. It's not like हमने काम start कर लिया तो हमको समझ में आ रहा है. Before also, yeah, you understand. आप इतने mature तो हो कि आप समझते हो भाई किसी का पैसा तो लग रहा है, किसका पता नहीं, पर किसी का तो लग रहा है. हम इतने आलसी हो जाते हैं यार उस समय रिटर्न करते हुए. And I think now Amazon realizes it, because of when you make a return, COD return, they will send you a check. Okay. अब तो अक्ल ठिकाने उनके शायद थोड़ी सी आ गई है. God, seriously. I have no idea about that. I have not yet. So even if it is like you, अगर आप ये return कर रहे हो and you ordered it on COD and आपने as low as 125 rupees, 70 rupees, they will send you a check. Okay. And half of the people, यार 125 रुपये के लिए कौन ब्रांच जाएगा चेक ड्रॉप कर? You will not do it ना. और उसका एक टाइमलाइन होता है 6 months का. So आपने नहीं किया, पैसा Amazon की पॉकेट में.
कहीं ना कहीं स्मार्ट ऑफ देम, कहीं ना कहीं तो रिकवर करेंगे ना यार पैसे, इतना लॉस में चल रहा है, सो कुछ तो रिकवर करेंगे, सो दैट्स हाउ दे आर डूइंग इट. एंड आई थिंक मिंत्रा आल्सो नाउ चार्जेस अ प्लेटफॉर्म फी एंड अ कन्वीनियंस फी like 199 rupees something like that. They also because I think it's high time for every company यार, कब तक लॉस में मेकिंग करते रहेगा. लॉस मेकिंग इज अ फैशन आई थिंक नाउ. Yeah. एंड मी एज अ स्टार्टअप ओनर मुझे लगता है कि ये कैसा बिजनेस हुआ. लाइक इफ यू जैसे शार्क टैंक आया, शार्क टैंक मैंने बहुत एक बूस्ट दिया है टू स्टार्टअप्स. सो वहाँ पे कई टर्म्स मैंने भी सीखी, कई बार समझा, कई बार यू रिलेट, कई बार यू नो यू सीखी कुछ गलत जा रहे हैं. सो वहाँ पे आ रहा है लॉस मेकिंग, बर्निंग, कितना बर्न है, बर्न रेशियो, मंथली बर्न. सो मुझे लगता है कि ये कैसा बिजनेस है जिसको 5 साल हो गया ये बर्न ही चल रहा है, कब तक चलता रहेगा. शुरू में चलो 1-2 साल तो आपको वो यू नो ब्रेक इवन करने में लगता है, दैट मेक सेंस टू मी ऑल्सो. बट 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, कंपनी को बर्न ही चल रहा है. 9-9 साल की कंपनीज बर्न चल रही हैं एंड पीपल आर इन्वेस्टिंग इट ऑल्सो. सो अभी तो मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आती. मे बी आई एम अ स्मॉलर बिजनेस राइट नाउ. Same. Probably बड़े they होके शायद have आए. some another perspective to it, but even I don't understand this. But Shark Tank, even though I started watching a lot season 1 में, and season 1 motivated me, राइट. but season 2 and 3 में ना सेल्फ मैंने भी डाउट हो देखा. गया था भाई. उसमें सेल्फ डाउट हो गया था कि ये क्या भाई, ये तो सीधा 100 करोड़ 1000 करोड़, इसको नहीं देखना. बिकॉज यू कॉन्ट रिलेट टू इट ना. Right. मतलब सडनली अब इन्होंने 1 महीना पहले या 6 महीने पहले काम स्टार्ट करा, मंथली सेल 2 करोड़ रुपए. अरे कैसे आ रही है, राइट. व्हाट आर दे डूइंग इट. और शार्क टैंक का क्या है, द कॉन्सेप्ट इज दैट दे विल, अब ऑब्वियसली वो पूरा पिच तो दिखा नहीं सकते ना, वो उनको 20-25 मिनट में पिच खत्म ही करना है. तो वो कैसे आ रही है सेल, वो डिटेल आपको दिखने मिलेगी नहीं. होगा क्या एंड ऑफ इट, यू विल फील यार मैं तो कुछ कर ही नहीं लाइफ में. राइट. तो सेल्फ डाउट जो आपने बड़ी मुश्किल से कॉन्कर करा था ना, वो दोबारा आ जाता है. Correct. सो आई स्टॉप्ड वाचिंग शार्क टैंक, आई बी Same, ऑनेस्ट. same. थर्ड मैंने एक भी एपिसोड नहीं देखा, थर्ड का तो, सेकंड भी नहीं कि मुझे लग रहा है कि यार ये मुझे ना टेंशन ज़्यादा दे रहा है. मेरे को उतना मोटिवेशन नहीं आ रहा, बट टेंशन ज़्यादा दे रहा है. सो आई स्टॉप्ड वाचिंग इट. आई थिंक इट्स Right, right. So I had another question for you. Just like we know now that you have a team, right? Team of 3 people and a studio, right? So I do want to ask a question कि मेरे हिसाब से in my experience team building is the most difficult part. राइट. Like especially choosing the right people, finding them, keeping them at that place, because nobody I think is permanent. They're there Right. for some reason or something. So how does that process of your onboarding of your say interns or your staff, 3 like permanent members, how did that happen and what was the journey? So see, I hired one person. I think I started hiring तब जब मुझे ज़रूरत पड़ी. Because आपको पता होना चाहिए कि आपको हायर क्या करना है. You know, even if somebody gives you 1 करोड़ रुपए, आपको खर्चना नहीं आएगा, so you'll make a mess out of it. So सबसे पहले मुझे ज़रूरत पड़ी एक पैकिंग पर्सन की, कि यार ये जो ऑर्डर मैं खुद पैक कर रही हूँ ना, अभी ये नहीं कर सकती, बिकॉज अभी मुझे बाकी जगहों पे ध्यान देना. आई नीड समबडी. सो आशीष केम इन चौखट थ्रू अ म्यूचुअल, आई वुड से अ रिलेटिव, बिकॉज ही हैड सीन हिम वर्किंग. एंड आई डोंट नो, आई थिंक मैं तो लिटरली मैं जैसे लाइक आई सेड मैं हनुमान जी को मानती हूँ. मैं तो उनको लाइक लिटरली मैं तो उनके पैर छूती हूँ कि मुझे आशीष दे दिया, बिकॉज आशीष इज लिटरली लाइक अ हनुमान टू मी राइट नाउ. मतलब ही एज अ पर्सन, ही इज नॉट ऑन अ वेरी हाई सैलरी बिकॉज इज अ पैकर, बट एज अ पर्सन उसको कुछ सिखाओ. ही इज़ सो मच इन टू लर्निंग कि अच्छा दीदी इसका जैसे कुछ इंग्लिश नहीं आती है, सो ही इज़ लाइक कि आप मुझे ना समझाओ इंग्लिश कैसे पढ़ते हैं, इस पर क्या लिखा हुआ है, मुझे लिख के दिखाओ, मुझे पढ़ के बताओ, मुझे कुछ डिफिकल्ट चीज़ लिख के दो, मैं पढ़ के सुनाऊंगा. सो आई थिंक वो उसका जो क्वालिटी था, मैंने हायर उसको नॉर्मली क्या वोंट लाई, बिकॉज ये क्वालिटी आपको पहले पता नहीं चल सकती है. वंस आई हायर्ड हिम, उस टाइम पे मैंने उसको सिर्फ हायर किया था क्योंकि मैं जो सैलरी दे पा रही थी उसमें उसने हाँ कर दी थी, वेरी ऑनेस्टली. धीरे धीरे 1 मंथ 2 मंथ जब वो चीज़ें आती हैं ना कि माल आ रहा है तो वो कैसे हैंडल कर रहा है, वो अनलोडिंग करा रहा है नहीं करा रहा है, छुट्टी मार दे रहा है, बिना बात की छुट्टी कर ले रहा है, वो चीज़ों पे नाउ आई नो कि आशीष से सही इंसान मुझे उस टाइम पे मिल ही नहीं सकता था. कि वो उतने छोटे स्केल पे मेरे साथ आया. ही स्टिल देयर विद मी एंड ही इज़ अ पर्सन जिसको मैं बहुत समझाती हूँ कि तू मुझे छोड़ के नहीं जाना है, बिकॉज एज आई ग्रो आई विल मेक श्योर यू ग्रो. बिकॉज मुझे लगता है कई बार कंपनीज में क्या होता है ना, वंस यू ग्रो आप अपनी टीम की इंपॉर्टेंस, उनकी वैल्यू भूल जाते हो. बट मुझे पता है कि आज मैं जहाँ खड़ी हूँ उसमें बहुत हाथ आशीष का है, बहुत हाथ, क्योंकि मैं आज यहाँ पे नहीं खड़ी होती. और उसने उस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठाया, बिकॉज ही नोज अभी भी कि कितनी ज़्यादा दीदी मेरे पे डिपेंडेंट है, और उसने उस चीज़ का भी फ़ायदा नहीं उठाया. यू नो, मैं कभी छुट्टी के लिए मना नहीं करती, एंड आई प्रेफर कीपिंग सैटरडे संडेज ऑफ. लाइक स्पेशली इन माई इंडस्ट्री यू विल रेयरली फाइंड पीपल कीपिंग ऑफ ऑन सैटरडे. लाइक मुझे मिंत्रा वाले फ़ोन पे कह रहे हैं
क्या आप सैटरडे छुट्टी क्यों रख रहे हो मैडम, क्यों नहीं करो? मैंने कहा क्यों रख रहे हो? मैंने कहा बिकॉज आई वॉन्ट माई स्टाफ टू लिव देयर लाइफ. आई मीन वट काइंड ऑफ अ क्वेश्चन इज दैट? बिकॉज आई फील कि यार आप अगर उनको बहुत ज़्यादा पैसा नहीं दे सकते हो, उनको एटलीस्ट कंफर्ट दो. करेक्ट. कुछ एक चीज़ आपको देनी चाहिए. यू कांट से कि भाई तू 7 दिन 6 दिन काम भी कर, सैलरी भी तुझे बस 10,000 ही दूंगी मैं. इट डजेंट वर्क दैट वे. इट इज़ आई थिंक एवरीथिंग कम्स इन अ सर्कल. यू प्रोवाइड, यू विल गेट, यू विल प्रोवाइड, यू विल गेट. आपने जब वो प्रोवाइड करना बंद कर दिया तो यार कमी नहीं है कंपनीज की, कमी नहीं है पैसे देने वालों की, एंड आप दे सकते हो. सो आई ट्राई कि मैं वो चीज़ को मेंटेन रखूँ. सेकेंड आई थिंक केम, आई थिंक मेरी जर्नी में एक बहुत अच्छी चीज़ आई जिसने मुझे हायरिंग में हेल्प करी. इट वॉज आई गॉट इंक्यूबेटेड एट IIM Bangalore, NSRCL में आई गॉट इंक्यूबेटेड. सो वहाँ पे मैंने सीखा कि हाउ डू यू हायर, व्हेन डू यू हायर. लाइक देयर वाज दिस मेंटोर जिनका नाम था अंकुश, एंड आई थिंक आई हैव नेवर मेट अ पर्सन लाइक हिम. बिकॉज जब आप किसी से मेंटोरशिप भी आप लेते हो ना, सो नॉट एवरीबडी कैन रिलेट टू यू. लाइक अब अगर मान लो आप 1 से 100 की सीढ़ी है बिजनेस के सक्सेस की, अभी मैं सेकंड पे हूँ. मेंटर्स विल स्टार्ट टीचिंग यू, एक्सप्लेनिंग यू स्टफ आफ्टर 10. आप बात करोगे कि मुझे ना ये प्रॉब्लम आ रही है, उनका जो आंसर होगा ना वो 10 एंड अबव के लिए वैलिड है, वो आपके लिए वैलिड ही नहीं है. सो ही एज अ पर्सन ही अंडरस्टूड दैट आई एम एट 2, एंड देन अकॉर्डिंगली ही मेड मी अंडरस्टैंड कि यार तुम्हारा सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ जा रहा है, सबसे ज़्यादा टाइम अपने दिन का तुम कहाँ लगा रहे हो, ऑर्डर डालने में. सो और वो बंदा हायर करो. आई कैन नॉट गिव अभी 50-60 हज़ार का सैलरी, आई कैन गिव छोटा सैलरी. सो छोटी चीज़ें डिवाइड कर लो ना, ठीक है. इट्स ओके इफ़ यू कांट गिव समबडी मार्केटिंग का पैसा, जिस चीज़ में तुम टाइम लगा पा रहे हो, जो क्लरिकल जॉब है उसके लिए हायर करो. सो आई स्टार्टेड हायरिंग समबडी फॉर अ क्लरिकल जॉब कि जो मेरे दिन का ऑर्डर डालना है, बेसिक ऑपरेशंस वाला काम है, इन्वेंट्री काउंट एंड एवरीथिंग, उसके लिए मैं हायर करूँ, विच इज़ दैट अ कम सैलरी विच विल हेल्प मी, विच विल बी लाइक अ हेल्पिंग हैंड. वो मेरे एंड से एटलीस्ट प्लेट से थोड़ा सा सामान लेके जाएगा. सो वहाँ पे आई हायर्ड गीता, एंड she she also comes from a very basic background. Like her husband, he runs an auto. So मुझे ना एज अ पर्सन समझ में आता है दैट इन दोनों का घर मेरी वजह से चलता है. मतलब अगर 1 तारीख से 2nd तारीख भी आ जाएगी ना, वो फॉर एग्जाम्पल 1 तारीख को संडे है, मैं प्रोसेस नहीं कर पाई सैलरी, उनसे ज़्यादा स्ट्रेस मुझे होगा कि यार शिट मैंने क्यों नहीं दिया है, मैं हाउ स्टूपिड दे. बिकॉज मुझे पता है दैट दे आर डिपेंडेंट ऑन मी, एंड आई नो दैट काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. बिकॉज जब मैं जॉब करती थी आई यूज टू लुक फॉरवर्ड, दिवाली आनी है, बोनस आना है, सैलरी आनी है, मेरे खर्चे टिके हैं उस पर. सो आई थिंक एज एन एम्प्लॉयर जब आप आते हो ना, आपको रियलाइज़ करना चाहिए कि आप पे लोग डिपेंडेंट हैं, एंड इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू. मैं अगर अपनी सैलरी विड्रॉ करूँ ना करूँ, उनकी ज़रूर देती हूँ, चाहे जैसे भी दूंगी, और मुझे देना है. सो वो जब दे नो दैट फीलिंग कि यार मैम टेंशन में आ जाती जब ये सैलरी नहीं देती, सो उनको अच्छा लगता है यार अब मैं इनके लिए ना 4 काम एक्स्ट्रा करूँगी, क्योंकि मैं उनका ध्यान रख रही हूँ, वो मेरा ध्यान रखते हैं. सो इट गोज, इट्स अ विन विन सिचुएशन, एंड इट गोज लाइक आई सेड, इट्स अ राउंड. सो आप ध्यान रखोगे, वो ध्यान रखेंगे फॉर श्योर. आपको इन फर्स्ट प्लेस करना है, दैट्स ऑल. सो आई थिंक दैट्स द बेसिक ऑफ हायर दैट यू हैव टू मेंटेन. From where did you hire her? आई थिंक गीता यूज टू वर्क वेर, वो आई थिंक इवेंचुअली मुझे मिली थी बिकॉज व्हेन आई वाज, जहाँ मैं रहती हूँ, मेरा जहाँ घर था, उसके सामने शी यूज टू वर्क इन अ प्रॉपर्टी रिटेलर काइंड ऑफ अ दुकान, एंड शी लॉस्ट हर जॉब बिकॉज उनको वहाँ पे निकालना था बिकॉज ऑफ वट एवर लॉसेज. सो फिर मैं 1-2 बार उनके पास अपना नोटरी का कुछ काम कराने गई हुई थी. सो आई रिमेंबर्ड हर. सो उनकी सिस्टर और वो वहाँ पे काम करती थी, उनकी सिस्टर वहीं थी, गीता को निकाल दिया था. सो मैंने उनकी सिस्टर से बोला, सो शी टोल्ड मी दैट आई हैव समबडी एंड यू नो दिस कैन हैपन. सो आई वाज लाइक ओके लेट्स डू इट. शी केम फॉर एन इंटरव्यू, एंड बात करने में मुझे अच्छा लगा कि यार इसको आता नहीं है बट शी इज़ विलिंग टू लर्न. That is the best वो आई thing. थिंक मुझे वो बेसिक एक चीज़ चाहिए, मुझे बाकी मैं सिखा लूँगी. Correct. वो ज़ील जो होती है ना सीखने की, वो आप किसी के अंदर डाल नहीं सकते. इफ़ यू वांट टू हैव राइट पीपल, वो ज़ील वाले बंदे ढूंढ लो, बाकी आसपास का सब चीज़ यू कैन सेटल डाउन. Correct. So I think that's the core of what you should do. Absolutely. And I think आपने अपनी जर्नी में भी challenges covered कर दिए हैं, हाँ. all that you faced. But is there anything that is left, like कोई ऐसा challenge which still stands out? और ऐसा कुछ आया हो कोई phase which is still in your mind very fresh and has made you learn something very important? I think see when you start आपके challenges अलग होते हैं, when you reach a middle अलग होते हैं, when you reach a Right. अलग होते हैं. कुछ चीज़ें कांस्टेंट रहती हैं. आई थिंक वो फंड्स एंड मार्केटिंग एंड ये बेसिक चीज़ें हैं. बट आई थिंक जो अभी रिसेंटली मैंने समझा है एज अ पर्सन, एज अ वुमन एंटरप्रेन्योर, आई विल से, वो इज़ दैट हमारी सोसाइटी में ना जो दे सर्टेन सेट ऑफ पीपल जिनको ना हाई, आई वुड से, ओपिनियटेड लड़कियाँ बर्दाश्त नहीं होती. यू नो, फॉर सम रीज़न
they will not accept you. And I am a kind of person, I am somebody who has built everything from scratch. Like अगर आप आज भी मुझे बोलोगे अगर आशीष नहीं आया है ये टेबल साफ करनी है, मैं कॉलर उठाऊंगी, कपड़ा उठाऊंगी, मैं साफ कर लूँगी, मैं झाड़ू लगा लूँगी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. एंड आई वॉन्ट कि जब ये कंपनी मैं कहती हूँ 100 करोड़ की भी हो जाए ना, तब भी आई वॉन्ट मेरे अंदर ये एटीट्यूड रहे. सो जब आप ऐसे एटीट्यूड वाले इंसान हो एंड देन यू काइंड ऑफ फेस दिस दैट पीपल आर नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट यू फॉर हु यू आर, तब आपको लगता है कि यार ये क्या है, अब इससे कैसे डील करना है. क्योंकि आपने सारे फेजेस क्लोज कर लिया. आपने जहाँ पे आपको लगा लड़का लड़की का फ़र्क आ रहा है आपने वहाँ कर लिया. जहाँ आपको लग रहा है आपकी एज इज़ अ फैक्टर बिकॉज ऑफ व्हाट यू आर फेसिंग इश्यूज, वो कर लिया. जहाँ पे आपको लग रहा है आप ज़ारा H&M माइकल कॉर्स नहीं उठा पा रहे हो, वो आपने अपने आप को समझा लिया, फोकस कर लिया. सो आई थिंक एवरी एज एंड एवरी पॉइंट ऑफ टाइम विल गिव यू डिफरेंट चैलेंजेस, एंड इफ़ यू स्टेप इन टू इट आप कर लोगे, you'll swim through it. So just टिके रहो. Yeah, but what was this experience of when you felt that I people think are not? I think जो हमारी जनरेशन है आज की, they understand this because I have gotten a lot of support from my friends कि यार तू क्या कर रही है, बिकॉज हर कोई ड्रीम करता है बिजनेस करने का, यू नो, लाइफ में ना यार मुझे कभी कुछ करना है, पर वो हिम्मत आप नहीं कर पाते. वो हिम्मत करना बहुत ज़रूरी होता है. बट आई थिंक फॉर अ लॉट ऑफ पीपल जो थोड़े पुरानी सोच के हैं, लाइक एल्डरली पीपल, दे विल नॉट अंडरस्टैंड कि आप क्या कर रहे हो, कि डे टू डे में आपको मार्केटिंग, फोटोग्राफी, रील, कस्टमर, क्योंकि आज का बिजनेस करने का तरीका बहुत अलग है पुराने तरीके से. पुराने तरीके में आपने सामान लिया, बेचा, या यू नो आपने एक दुकान खोल के बैठे हो, तो वो ऑनलाइन वाला जो समाना है ना उसमें स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है. बट क्योंकि पुराने लोगों को नहीं पता कि क्या है, दे डोंट गिव यू दैट काइंड ऑफ रिस्पेक्ट. दिस इज़ व्हाट आई फील. सो आई थिंक वो अभी मेरा एक चैलेंज है जो मुझे उससे स्विम थ्रू करना है कि आई नो वट आई एम डूइंग. येस, आई माइट नॉट बी एज सक्सेसफुल एज यू वर, बट आई एम ऑन माई ओन जर्नी. देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन एनी ऑफ अस, एंड आई थिंक या सो आई हैव टू स्विम थ्रू दैट. Right. अभी करंटली ये चल रहा है, Yeah. नया नया ताज़ा ताज़ा. That is great. I'm sure you're gonna swim through. आई होप सो. Yeah. So you're also talking about a story that we left behind, animal lover, and how do you became Yeah. one? So I'm very interested Okay. there as well. सो लाइक आई सेड, जब मैंने स्टार्ट किया सो एनिमल थीम अच्छी थी, एंड इस रीजन से मैंने स्टार्ट किया. एंड आफ्टर आई थिंक ड्यूरिंग कोविड स्टार्टेड इन मार्च, एंड अप्रैल में वी बॉट अ डॉग. सो माई यंगर सिस्टर वॉज वेरी यू नो, शी हैड दैट काइंड ऑफ माइंडसेट कि मैं खरीदूंगी नहीं डॉग, हम अडॉप्ट करेंगे. सो बोला ठीक है, मतलब फॉर मी एंड फॉर एवरीबडी इन द फैमिली इसका कोई फ़र्क नहीं है, कुत्ता है, यू नो, उतना ही है. अभी अडॉप्शन एंड यू नो एंड खरीदना एंड एवरीथिंग, ब्रीडिंग क्या है कुछ पता ही नहीं चीज़ का. शी रिदम मेड अस लर्न कि ये क्या है, मैं क्यों बोल रही हूँ अडॉप्शन, और जो ब्रीडर्स होते हैं वो कैसे ट्रीट करते हैं, उसके बाद डॉग्स को क्या होता है, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन वो हमको डालती रहती थी. एंड वी बॉट मर्फी, हमारे घर में आ गया. ही वॉज 55 डेज जब वो आया घर में. सो जब आप घर में आपके एक डॉग आता है ना, आई थिंक आपका पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स एनिमल्स इतना बदल जाता है, बिकॉज देन ही इज़ नॉट जस्ट अ डॉग, इवेंचुअली वो आपका बच्चा होता है. ठीक है, ये आई थिंक बहुत जो जिनके पास घर में डॉग्स नहीं उनको नहीं समझ में आएगा, एंड दैट इज़ टोटली फाइन. बिकॉज मैं बहुत कुत्तों से डरती थी. मतलब अगर वो मेरे पास भी आएगा ना, मेरी रूह काँप जाएगी, मैं उतनी डरती थी. और आज मैं उसके मुंह में हाथ डाल के दवाई डाल सकती हूँ. सो वो आपके घर में जब आता है तभी वो आपके अंदर चेंज आता है. सो वो आया, एंड जब वो आया तो ही ऑल्सो वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ चेंजेस. कभी बीमार है, कभी सुस्त है, कभी गिर गया तो पैर में लग गई चोट, कभी बाहर के डॉग्स पे भौंक के आया है तो किसी ने मारा है, यू नो. सो हमको उस फेज़ में पता ही नहीं था कि डॉग को हैंडल कैसे करना है. मैं उसको बहुत मारती थी. हमने एक ट्रेनर हायर किया, आई डोंट नो वाई, मतलब टिल डेट आई रिग्रेट, पता नहीं किस टाइप का वो ट्रेनर था, बिकॉज वो ट्रेनर है, ही विल टीच अस, तो वो जो बता रहा है वो सही होगा. सो उसने हमें बताया अगर ये नहीं मानता तो इसको मारो और ये करो. ही वॉज अ वेरी हॉरिबल काइंड ऑफ अ ट्रेनर. नाउ आई फील कि क्या कर रहे थे हम और वो क्या बता रहा था हमको, जो भी है. सो माई डॉग वेंट इन टू डिप्रेशन. ओके, अभी डॉग भी डिप्रेशन में जाता है, पता ही नहीं था. सो आई टुक हिम टू अ डॉक्टर. ओके, एंड ही एजुकेटेड अस कि इसको हुआ क्या है, ये क्यों आप पे घुरा रहा है, how you need to fix it, everything he told us. सो धीरे धीरे समझ में आने लगा कि वो जो उसने हमें ट्रेनर ने सिखाया था वो गलत था. वो टीचिंग वो गलत है. हम उसको मार रहे हैं, उसको पेन हो रहा है, वो रो रहा है, वो डिप्रेशन में चला गया, बिकॉज अब उसके अंदर डर बैठ गया है कि अगर आप चप्पल उठाओगे तो उसको पड़ेगी मार. इवन इफ यू आर वेयरिंग द चप्पल, आप उसको मार नहीं रहे हो, बट वो तो डर गया है ना.
सो अगर वो यहाँ बैठा हुआ है, उसके 3 फीट की दूरी में चप्पल रखी है, आप वो चप्पल उठा नहीं सकते, वो आपको उठाने वो काटने को आएगा. सो ये क्यों कर रहा है हमको समझ ही नहीं आ रहा. तो डॉक्टर ने हमें समझाया. सो देन वी रियलाइज ओके दिस इज़ वॉट वी हैव डन रॉन्ग. सो इमीडिएटली उसको मारना बंद हो गया. उसको ट्रीट्स के साथ हमें फिर नया लर्निंग का तरीका समझ में आया कि हमें इसको ट्रीट दे के लर्न कराना है, ये करना है, वो करना है. सो इट्स बिन अब नाउ ही इज़ 4 years. सो अब ही इज़ ऑल घर का लाडला बच्चा वाला चीज़ है. नथिंग. जब वो आया, जब उसका मैंने पेन देखा, बिकॉज वो रोते भी हैं, वो चिल्लाते भी हैं. अगर आप उसको अकेला छोड़ के चले जाओगे तो वो पीछे से रो रहा है, वो चिल्ला रहा है. लाइक मैं पड़ोसी यूज्ड टू कॉल में कि दीदी कब आ गया, रो रो के इसकी हालत ख़राब हो रखी है, यू नो. सो तब आप रियलाइज़ करने लगते हो कि ये भी इंसान जैसे ही हैं इक्वली. लाइक माई डॉग हैज़ थायराइड, उसको हम इंसान की दवाई देते हैं. Okay. So animals are 90% humans, better than humans I would say. But in terms of emotions and physical body and body parts and internal things, everything is human. उनको इंजेक्शंस लगते हैं, उनको पेन होता है, उनकी सर्जरीज होती हैं, उनका दर्द होता है, उनको बुखार चढ़ता है, उनको खांसी होती है, थायराइड होता है. एवरीथिंग इज़ ह्यूमन. हम कभी सोच ही नहीं रहे. उनको भी पेन होता है, उनके भी इमोशंस है. अगर उनको भी उस टाइम पे फिर बीच में होने का कि हम डॉग नहीं हैंडल कर पा रहे हैं, सो हमें इसको शेल्टर होम में देना पड़ेगा. बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है. तो हमें बोल रहे हैं कि उसको भी डिप्रेशन होता है, एंग्जाइटी होती है, तुम ऐसे थोड़ा अबैंडन कर दोगे. अबैंडन कर दो, वो आपको लाइफ लॉन्ग डॉग ढूंढता रहता है. एंड जब आपको ये चीज़ हो रही होती है ना, समहाउ इंस्टाग्राम नोज इट, सो ही विल सेंड यू द रील्स कि ये हो रहा है. सो वहाँ से समझ आने लगा कि नहीं यार, ये नहीं कर सकते हैं. इफ़ यू अबैंडन अ डॉग, उसकी लाइफ ख़राब हो गई, ही माइट नॉट बी द सेम. इट्स सेम लाइक आपका ब्रेकअप होता है, आप वो सेम बहुत टाइम नहीं रह पाते. यू नो, मूव ऑन करना इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर यू. इट इज़ सेम फॉर अ डॉग. सो दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि एवरी एनिमल इज सेम. उसके बाद अगर मैं एक सड़क पे चल रही हूँ और मैंने देखा है कि एक घोड़ा जा रहा है, जैसे हमारे इंडियन कल्चर में अगर आप शादी करते हो तो घोड़े पे आना इज़ अ कल्चर, इज पार्ट ऑफ दिस थिंग. तो वहाँ पे मुझे वो घोड़ा सैड लग रहा है फॉर सम रीज़न. मैं उसको देख रही हूँ एंड आई कैन सम हाउ, आई डोंट नो वाई, बट आई कैन फील द पेन कि उसको घंटों 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 धूप में खड़ा कर रखा है, चला रहे हैं. उसके ऊपर एक 70 किलो का 80 किलो का आदमी जाके बैठ गया है फॉर सम नॉनसेंस रीज़न. उसकी तो कोई सोच ही नहीं रहा. और वो जब वो बुढ़ा हो जाएगा या वो लंगड़ा है तो तुम उसको छोड़ाओगे कहीं पे भी. फिर उसका क्या, फिर उसका कुछ नहीं. भगवान मालिक है. व्हाट नॉनसेंस वो है. या आप जो सब्जी वाले देखो, वेंडर्स हमारे यहाँ पे जो कार्ट्स होती हैं, दे स्टिल यूज़ यू नो काउज एंड बफेलोज एंड स्टफ टू कैरी सामान वो लेके जाने के लिए. वो अभी भी गाय भैंसों पे, उसके को कितना पेन हो रहा है. उसको तुम मार रहे हो, धूप में चला रहे हो. तुम धूप में चला रहे हो, तुम तो अपने छतरी कर ली, तुम शटल में बैठ रहे हो, वो धूप में, वो थकेगी नहीं. तो वो थक रही है तो तुम उसको मार रहे हो. सो वो चीज़ें मेरे को धीरे धीरे दिखने लगी. एंड वंस यू स्टार्ट सीइंग इट ना, आपको हर जगह से वही दिखता है. देन आई स्टार्टेड फॉलोइंग ऐसे पेजेस. वहाँ मुझे दिख रहा है कि लोग, मतलब मैंने कहीं कहीं पे देखा है कि आदमी एज अ ह्यूमन, किसी ने कुत्ते के मुंह में पटाखा रख कर जला दिया, उसका आधा फेस बर्न हो गया. I saw that. आई मीन व्हाट काइंड ऑफ अ बिहेवियर इज दैट. आई मीन इतना इतना इनह्यूमन हो तुम. तुम्हें ये क्या मजा आ रहा है? For that instant fun, बस. उसमें फन भी क्या आ रहा है? किसी के पेन से तुमको हाँ, फन मिल रहा है? right, but आई मीन तुम तो फिर नॉर्मल इंसान नहीं, तुमको कोई मेंटल प्रॉब्लम है. अगर आपको इस चीज़ से फन मिल रहा है, आपको मजा आ रहा है ये देखने में, कुत्ते को पत्थर मारने में आपको फन आ रहा है, तो आप मेंटल हो. आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए. दिस इज नॉट राइट. सो वो मैं देख रही हूँ. अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो देखी कि आई थिंक कोई गांव के लोगों ने, एक आग जल रही है और उसमें लाइव कुत्ते को से फेंक दिया. वो कितना तड़पा होएगा, कितनी चीखे हुई होंगी. एंड आई एम श्योर, मतलब आई बिलीव कि जब आप ऐसे करते हो ना, भगवान गिव्स यू बैक. एंड व्हेन ही गिव्स यू बैक ना, यू कैन नॉट हैंडल इट. आप संभाल नहीं सकते. जब भगवान उतर आता है ना अपने पे कि तूने उसके किए हुए बनाए हुए क्रिएचर के साथ में ये किया, वो आपकी लाइफ में जो तबाही मचाएगा ना, आप रोक नहीं पाओगे उस चीज़ को. एंड इंसान इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करते. हमें किसने बनाया? भगवान ने. या चलो अगर आप भगवान में भी नहीं मानते, किसी ने तो बनाया है, सम हायर पावर. उसी ने जानवरों को बनाया, उसी ने पेड़ पौधा बनाया, उसने हमारे इकोसिस्टम के लिए सब कुछ बनाया. हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे, जानवर किसको क्या खाएगा, उसने बनाया है. यू आर नो बडी टू डू इट. सो मुझे ऐसा लगता है कि आज हम जो, आई एम अ वेजिटेरियन, आई डोंट ईट नॉन वेज, पर मुझे लगता है कि जो नॉन वेज खाते हैं, आपको किसने हक दिया किसी को काट के खाने का? भगवान ने नहीं बनाया, ये तुमने करा है, तुमको टेस्ट आ रहा है. एंड देन रिसेंटली आई गॉट टू नो कि जो चिकन होता है वो झटका और वो हलाल भी कोई चीज़ होती है. आई वाज लाइक, एंड आई स्वेयर उस दिन मैं सोई नहीं. जिस दिन मुझे पता चला, मैंने कहा तुम उसका डेथ भी डिस्कस कर रहे हो कि वो कैसे मरेगा, हम कैसे खाएंगे. मैंने कहा ये कैसा माइंडसेट है. मतलब मुझे समझ में नहीं आता एज अ पर्सन. ठीक है, बहुत लोग आई एम श्योर जो ये पॉडकास्ट देखेंगे दिल लाइक वो वेजिटेरियन, आई नो. बट सिंस आई एम
यू नो इनटू दैट काइंड ऑफ आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन, आई फील देयर पेन कि क्यों कर रहे हैं. जैसे आप देखो अभी रिसेंटली वहाँ पे आया था ना केदारनाथ है, Yeah, यू सॉ दैट, एवरीबडी सॉ दैट. I was about to वो say. उसको वो नशा करवा रहे हैं ताकि वो चलता रहे, उसको पेन ना फील हो. एंड में वो गिर के खून निकल रहा हो तो उसको छोड़ दे रहे हो. सो ये क्या है ये? ठीक है, मेरा माइंडसेट है कि ठीक है, अगर आप एक सब्जी वाले हो, आप एक ऑटो अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो आपने एक भैंस या गाय वट खरीद ली, आप उसके सहारे चलते हो. ठीक है, गुड इनफ, वेरी गुड, चलाओ. पर उसका ध्यान भी लाइफ लॉन्ग रखो. इट्स अ गिव एंड टेक. तुम उससे सिर्फ लिए चले जा रहे हो, तुम उसको दे नहीं रहे हो. यू नो जैसे गाय है, गाय का दूध लिए जा रहे घास, जब उसने दूध देना बंद कर दिया तो उसको छोड़ देंगे. सो फिर ये क्या बात हुई? तुमने उसका फ़ायदा पूरा उठा लिया और फिर उसको छोड़ दिया तड़पने के लिए, वो मर रही है, उसको खाने को भी कोई नहीं दे रहा. सो वहाँ से धीरे धीरे मुझे समझने आया कि यार ये तो कुछ ठीक नहीं चल रहा है. मैंने वहाँ से अपने स्ट्रीट डॉग्स को नोटिस करना शुरू करा कि यार मैं अज्यूम कर रही थी कि ये इनको मिलता है खाना, पर मैंने एक बार खाना दिया एंड उसने ऐसे खाया इतना जैसे उसको बहुत हफ्तों से खाना ना मिला हो. और मैंने एक बार दिया एंड इट वाज अ शॉकिंग यू नो थिंग फॉर मी कि यार इसको नहीं मिलता है. ये हमारा अजम्पशन है कि ये खिला देते होंगे, लोग इतनी रोटी छोड़ के जाते हैं, या वो 4 दिन की पड़ी हुई पापड़ हो चुकी है रोटी, वो नहीं खा सकता है वो. या ये छोले चावल, कुत्ते छोले चावल नहीं खा सकते. पहले तो तुम सीखो कि कुत्ते खाते क्या हैं, बिकॉज आई स्टिल सी कि मेरे घर के बाहर में जहाँ पे होगा ना वहाँ छोले चावल छोड़ जाएंगे, राजमा चावल. कुत्ता नहीं खा सकता राजमा चावल भाई, ही कैन नॉट, ही विल नॉट. तो वो नहीं है लोगों को समझ. And So वहाँ से मुझे दिखा. I can relate to this because क्या था, we used to feed our stray dog बाहर. तो हमारे घर के बाहर there is this बर्तन we have kept and उसमें हम खाना डाल देते हैं. तो what happened was, this happens regularly. So what happens is when we open the door at that particular time, जैसे हम रात बाहर को ही बैठे डालते होते हैं and कोई भी गेट खोलेंगे वो इतनी दूर से भागता हुआ आएगा because he'll उसको sense पता है it कि कि खाना मिलेगा खाना मुझे. मिलेगा So मुझे. उसके लिए कितनी उसके लिए क्या है, उसके लिए खाना ही सबसे बड़ी चीज़ है. Right. एंड वो कहते हैं ना आप कुत्ते को 2 टाइम खाना दो, 3 टाइम, वो आपका ज़िंदगी भर के लिए वफादार हो जाता है, ज़िंदगी भर के लिए. तो वो अब इसके पीछे कई लोग बोलेंगे कोई गली का कुत्ता है जिसको काट लिया ये. आप समझो तो सही, वो सारा दिन एक तो भूखा है, वो धूप में बैठा है, वो प्यासा बैठा है, उसे खाना नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा, ऊपर से तुम पत्थर मार रहे हो, फ्रस्ट्रेटेड है, तो वो कहीं तो कुछ तो करेगा. वो भी भाई इंसान नहीं है, पर वो भी जानवर है, जीती हुई चीज़ है वो. सो आप वो करोगे तो उसके आपको लास्ट की चीज़ें तो दिख रही है कि काट लिया इसने, उसके पीछे उसने काटा क्यों वो नहीं दिख रहा. मतलब तो अब तो मैं इतना ज़्यादा हूँ. जैसे अब मैं फीड करती हूँ अपने स्ट्रे डॉग्स. लाइक मेरे घर के बाहर 3 डॉग्स हैं जिनको रेगुलरली मैं फीड करती हूँ. उनके लिए मैंने एक छोटू सा अपना घर के बाहर एक घर बनवाया है, और लाइक अ वेरी मेटल का प्रॉपर, वो कि वो सर्दी में बारिश हो रही है तो वो गाड़ियों के नीचे घुसे हुए हैं. Right. फिर गाड़ी चली तो उनको हिलना पड़ता है, गाड़ी चली तो चढ़ा देते हैं चढ़ा लोग गाड़ी. चढ़ा के भाग जाते हैं. And I tell you this what happened अभी recently, I think 3-4 months back, हमारे घर के सामने किसी ने एक छोटा सा पपी था, ठीक है, उसको नहीं पता गाड़ी के नीचे है. आई गेट इट, आपको नहीं पता, बट जब आपको पता है कि वहाँ पे नीचे पपी शेल्टर लेते हैं, आप चलाने से पहले एक बार जस्ट चेक कर चेक लो इट क्या वंस, प्रॉब्लम है, इसे झुक के चेक करो करना है. हाउ बिग ऑफ अ डील इज इट. राइट. ठीक है, उसने पीछे बैक करते हुए गाड़ी चला दी पपी के ऊपर. नाउ सी, नाउ व्हाट हैपेंस इन दिस इज, आई गेट द पॉइंट दैट दिस हैपेंड बाय एक्सीडेंट. व्हाट वाज योर ड्यूटी? टू टेक हिम टू द वेट, राइट? उसने क्या किया, ही कॉल्ड द गार्ड ऑफ द सोसाइटी एंड सेड इसको फिकवा दो. आई नो. एंड मी एंड माई ब्रदर वर फ्यूरियस. हम किधर जा रहे थे, हम आधे रास्ते से वापस मुड़ के आए हैं कि यार ये तो फेंक देंगे इसको. एंड वी टुक दैट पपी टू द वेट, ठीक है, और वहाँ पे जाके वो बता रहा है कि इसकी तो बिल्कुल हड्डी अलग हो गई है, इसकी मसल अलग हो गई है, उसको जोड़ के दे पुट दैट. और मैं मतलब वहाँ पे उसकी मदर भी थी पपी की, एंड वो नहीं छूने दे रही थी, जो हम समझ रहे हैं, ठीक है. इट इज़ डिफ़िकल्ट उस टाइम पे लेके जाना. एंड यू नो व्हाट, वो पपी इवेंचुअली डाइड बिकॉज उसको लाए, हम उसको अंदर घर पे नहीं रख पा रहे हैं, उसको उसकी मदर, उसके छोटे भाई बहन, दे नीड उसको भी, है ना. तो हमें क्या था, हम 3 दिन बाद वापस से ले जाएंगे पट्टी कराने के लिए. बट उसके भाई बहनों ने ना कि ये क्या चीज़ है, पट्टी क्या चीज़ है, उसको काट काट के निकाल दिया. एंड सुबह ही जब हमने देखा उठ के, वो जा चुका था. एंड आई क्राइड लाइक एनीथिंग कि अगर मैं इसको अंदर रख लेती या मैं इसको दोबारा डॉक्टर पे ले जाती तो क्या बताइए बच जाता. वो तो है ही, वो तो होता ही है. एंड आई डोंट अंडरस्टैंड, जिसने किया है वो बंदा जाके अंदर बैठ गया बस घर में. लाइक ये माइंडसेट तो मुझे भी समझ नहीं आता. मतलब मैंने जब मैं इस चीज़ में आई, व्हेन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि अच्छा ये चीज़ है, एंड आई कैन हेल्प देम. यार इतना बड़ी बात नहीं है. मतलब अगर आप एक पत्थर का मटका या पत्थर का एक वो बाउल लेके अपने घर के बाहर रख दोगे, उसके अंदर बस तुम रोज़ देख लो पानी है, कितनी बड़ी चीज़ है यार.
मतलब इंडिया जैसी जगह में तो बोला था ना पुण्य मिलता है, तो तुम पानी पिलाना तो पुण्य का काम है ना, तुम्हें उसमें भी आफत आ रही है। मतलब जो तुम्हारा बचा हुआ खाना है, रोटी में मलाई लगा दो, बेसिक नॉलेज गूगल है यार तुम्हारे पास में, कुत्ता क्या खाता है तुम लिख दो, कुत्ता गुआवा खाता है, बता देगा गूगल खाता है कि नहीं खाता। तो तुम्हें बस एक दो बची हुई रोटी, हर किसी घर में रोटी बच जाती है। हम क्या करते हैं, रोटी या तो फेंक देंगे, गाय को डाल देंगे। तो अच्छी बात है एटलीस्ट गाय को तो डाल रहे हो, कुछ तो तुम कर रहे हो लाइफ में। पर छोटी सी चीज़ है, एक पानी का बॉटल, पानी का एक कटोरा बाहर रखना इज़ नॉट अ बिग थिंग। सो और अगर आप टाइम पे हेल्प करो ना तो बचते हैं डॉग्स। ये मुझे पता नहीं था, मुझे था यार मार गया कोई अब तो मर ही जाएगा। पर एक बार एक इंसिडेंट हुआ, हमारे गली में कोई मार गया था, एंड आई हैव 2 वुमेन अदर देन मी। वो मेरे घर से एक प्लॉट छोड़ के ही रहते थे। दे आर डॉग लवर्स, मतलब मेरे से भी कहीं ज़्यादा। सो उन्होंने और मैंने तीनों ने मिलके उस डॉग को किसी तरीके पकड़ा, उसको डॉक्टर के पास लेके गए, वो दोनों लेके गए। आई पेड फॉर इट कि मैं कंट्रीब्यूट करूँगी, बिकॉज ऑब्वियसली फाइनेंशियल वो भी आता है। एंड नाउ इट्स बिन 2 years, आई कैन सी दैट डॉग रनिंग हेल्दी हैप्पी, सो नाइस। उसमें मुझे लगा कि यार ऐसा नहीं है, इंसान हेल्प करे तो बच सकते हैं। ऐसी चीज़ तो नहीं है कि ये कोई गाड़ी मार गई है तो ये मरना ही लिखा है इसका। सो उसका पूरा जो यहाँ छाती थी ना पूरी वो छिली थी, तो इट वॉज पूरा बैंडेड, पूरा लगा हुआ बैंडेज से, एंड वो बचा है और आज वो अच्छा खासा खेलता है। तो उसमें क्या बड़ी चीज़ है, मुझे लगता है ह्यूमन अगर थोड़ी सी हेल्प करे ना, वी कैन फिक्स वट एवर वी हैव डन। थोड़ी सी हेल्प। राइट, एंड आई एम श्योर पीपल हु आर वाचिंग दिस प्रोबेबली, जिन्होंने नहीं रियलाइज किया होगा, आई वोंट से एनीबॉडी इज इनह्यूमन, बट जिन्होंने नहीं रियलाइज गलती जिनसे हुआ है, हाँ, या मे बी देम, दे कैन प्रोबेबली, या बहुत छोटी छोटी चीज़ें। लाइक जैसे मैं अगर मेरी आदत थी, जब सबसे मैंने अर्न करना स्टार्ट करा तो हर बार मैं अपनी सैलरी का कुछ पोर्शन ना इन चीज़ों के टुवर्ड्स देती थी। लाइक मेरी एक आदत थी, जब मैं जॉब करती थी तब तो एक फिक्स सैलरी आती थी, तो मैं जब भी मेरी सैलरी आई है उस दिन अगर मैं मेट्रो से आती थी घर, सो मेट्रो पे किसी एक गरीब इंसान को मैं खाना लेके देती थी। वहाँ जो बर्गर मिल रहा है, मोमोज मिल रहा है, जो भी मिल रहा है मैं देती थी। मैंने अपनी आदत बनाई हुई थी। वंस मैंने जाना बंद कर दिया, मेट्रो से जॉब बंद हो गई, आई शिफ्टेड दिस कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनिमल्स। नाउ आई एम एसोसिएटेड विद 2-3 जो भी मेरे परमानेंट, जो मेरी आंखों के सामने हैं, सो हम उनको अब मैं डोनेट करती हूँ। कभी अगर मैं खुद नहीं दे पाती हूँ, जैसे मैं तो खुद भी करती हूँ स्ट्रे डॉग्स को, अगर मैं कभी नहीं कर पाती हूँ सो आई मेक श्योर कि मैं डोनेट करूँ। लाइक ऑन माई वेडिंग आई स्पॉन्सर्ड 450 डॉग्स का फूड। वाओ। So on my 5th anniversary of Chaukhut, I sponsored the food of 400 dogs. So मुझे लगता है यार अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप बिजी हो, आई अंडरस्टैंड, फाइंड सम जेन्युइन पीपल हु आर डूइंग इट जेन्युइन, एंड आई थिंक आज के टाइम पे यू कैन फाइंड। ऐसा कुछ बहुत डिफिकल्ट रॉकेट साइंस नहीं कि तुमको नहीं मिलेंगे, उनको दे दो। 100 रुपये से शुरू करो, 50 रुपये से कर लो, इट डजेंट मैटर। आपको अच्छा लगेगा कि आप अपनी जो भी आप कमाई कर रहे हो उससे बरकत आती है। इन अ वेरी देसी सेंस इफ आई टेल यू, उससे बरकत आती है। यू इफ यू डू इट, इट इज़ अगेन अ सर्कल, इट विल कम बैक टू यू इन सम और द अदर वे। सो ये होता है छोटी छोटी अगर आप गाड़ी लग गई है, आप इसको वेट के पास नहीं लेके जा रहे हो, इतना बड़ा काम नहीं कर सकते हो, ट्राई पीपल, फाइंड पीपल अराउंड यू। आई थिंक यार हम लोग हर गली 2-3 गली में अवेलेबल है। लाइक इवन आई वाज स्कैर्ड ऑफ पेट्स एट दैट टाइम, मेरे को भी डर लगता था, एंड Call द somebody फर्स्ट for थिंग help. दैट वी वांटेड टू डू वाज दैट कॉल अ वेट हियर, हाँ, बिकॉज अभी तो सब कुछ अवेलेबल है, बट दैट वेट सेड कि आप ले आओ ले वहाँ आओ। पे। तो आई हैड टू ओवरकम दैट फियर फॉर दैट छोटा सा पेट ना यार, मैं उसको छोड़ थोड़ी ना सकती हूँ कि मेरे को डर लगता है उठाने में। या मैं तो कह रही हूँ अगर आपको डर भी लग रहा है आप छोड़ भी सकते हो, आपको वेट भी नहीं आ रहा है। बट आई थिंक आज जितने स्ट्रीट एनिमल्स और जितनी ये खुला हुआ है ना, आई थिंक एवरी अदर सेकंड गली में यू विल फाइंड समबडी हु हेल्प्स डॉग। तो इन जनरल जो स्ट्रे एनिमल्स का ध्यान रखते हो उसको बुला लो, उसको एटलीस्ट कॉल तो कर दो, क्योंकि मुझे भी डर लगता था इनिशियली बहुत ज़्यादा। तो आई यूज टू ऑलवेज कॉल दोज 2 गर्ल्स कि यार ये ना मैं ऐसे रैंडम चल के जा रही हूँ और मैंने एक डॉग देखा और मुझे लग रहा है कि ये मरा हुआ है, वो बिल्कुल नहीं हिल रहा, उसका पेट नहीं हिल रहा, सांस नहीं चल रही, और मुझे को छूने में डर लग रहा है। अब मैं आगे बढ़ गई, देन आई केम बैक, मैंने कहा यार मैं इसको ऐसे छोड़ के जा तो नहीं सकती, बिकॉज माई हार्ट इज़ नॉट अलाउइंग मी टू गो, पर मैं इसको छू भी नहीं पा रही। सो आई कॉल देम, आई एम लाइक यार ये ना एक मेन रोड मैंने देखा, आप अभी आ सकते हो? शी केम, शी इज़ लाइक हाँ ही इज़ डेड। सो उन्होंने उसको एक चद्दर में हमने लिया, स्कूटी पे दिया, एंड वो उसका करने के लिए चले गए, एंड आई वेंट, दैट गिव मी पीस। उसको कम से कम एक शांति से मौत तो मिल गई। सो वो मुझे लगता है आप बहुत बड़ा काम मत करो यार, यू सिंपली डोनेट बेसिक 500 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, जो आपको लगता है आप कर सकते हो, प्लीज़ डू दैट। सो आई डू दैट। अब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हर मंथली में उस चीज़ को करूँ जो लोग जेन्युइनली कर रहे हैं। That is amazing, and that is very kind of you as well. So yeah, coming back to the small business Yes. part, yeah. So just sum it up for our audience. Is there anything, any note that you want to give to any budding
small business owner who want to start something, is still scared of starting up? Whatever do you want to like convey to them? I think yeah, to anybody who's wanting to start कि कभी लाइफ में कुछ करना है, so I think उसको कभी पे नहीं छोड़ना चाहिए, उसको अभी करना चाहिए. I know सबको लगता है क्या इसके लिए बोलना आसान है, इसे हमारी सिचुएशन नहीं पता. I know जब मैंने स्टार्ट किया था तुम्हें मेरी सिचुएशन भी नहीं पता थी. हमें देयर इज़ नो कंपैरिजन कि मेरी सिचुएशन ज़्यादा नीचे थी कि तुम्हारी ज़्यादा नीचे है. इट्स अबाउट द फैक्ट कि तुम स्टार्ट करो, थोड़ी सी हिम्मत करो. ठीक है, आप बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हो, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, एवरीथिंग. साइड लाइन एज अ पार्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट करो. स्टार्ट करके देखो, बिकॉज अगर आपको लगता है यार मैं ना रिसोर्सेज का वेट करूँगा, मैं ना सेविंग का वेट करूँगा, मैं ना राइट टीम का वेट करूँ, वो कभी नहीं होगा. You start it and then build it. You cannot build it in your mind and then start it. So I think that's the major learning that I have understood. You start it, whatever will happen, you will take it, you will swim through it. So just डूब जाओ उस पूल में अगर तुम्हें करना है genuinely. So that's all. Right, definitely. Thank you so much, Prachi, for being here and for your experiences. I'm definitely too much inspired by your journey as well, from where you started and where you are now, and I'm sure you're gonna reach more heights. Thank And you. I'll put the description of your page and your products as well in the in the description, and people can just watch the amazing products that you sell as well. Thank you so much. Thank you, Prachi. It was great. glad to talk to you and share a lot of things जो मैंने बाकी interviews में कभी share नहीं किया है. Yeah. So I think it went well, and I hope I can inspire somebody and somebody can start their own thing. Definitely. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. Yeah.